All of you, myself Asit Kumar Patnaik. Again, I am coming back to my channel Asit Government Rule Guru. Today, I will discuss MCQ on procurement of goods, General Financial Rules 2017, and it is latest one. And I make this video after certain amendments in General Financial Rules, and it would be very useful for upcoming principal exams, and also it would be useful for you in case of interview and viva. So I do not want to waste more time. I am going to discuss 100 MCQs. So my friends, if you have not subscribed my channel, please subscribe me so that you can get notification for my upcoming videos. Question number 1. The Consolidated Fund of India is defined under which article of the Constitution? Question बहुत बार आया है. Be it article 266(1), be it be article 267(1), be it C article 268(1), be it D article 269(1). Answer is bit A, article 266(1). Clear? Question number 2. The Contingency Fund of India established under the Contingency Fund of India Act 1950 in terms of article dash of the Constitution. 4 choices given: article 266(1), article 267(1), article 268(1), article 269(1). Answer is bit B, article 267(1). Article 266(1), it is related to the Consolidated Fund of India, and the Contingency Fund of India, it is related to article 267(1). Answer is bit B. Question number 3. The Public Account of India referred to in dash of the Constitution. 4 choices given: article 266(2), article 267(1), article 268(1), article 269(1). Answer is bit A, article 266(2). Clear? article 266(1) में Consolidated Fund of India related है. So the Public Account of India referred to in article 266(2) of the Constitution. Answer is bit A. Question number 4. Which item will not come under the purview of definition of goods? Be it A, intangible products like software, patents. Be it B, vehicle, aircraft, ships. Be it C, books, publication, periodicals. Be it D, vehicles, aircraft, ships. Answer is bit C, books, publication, periodicals. ये जो आइटम्स है वो डेफिनेशन ऑफ गुड्स में नहीं है. Just you go through General Financial Rule 143. So easily you can detect that books, publications, periodicals in library. Okay, these items are not included in goods. So answer is bit C. इसका थोड़ा explanation देख लीजिए. Definition of goods under Rule 143, goods include all articles, commodity, livestock, furniture, raw material, spares, instruments, machinery, equipment, industrial plant, vehicles, aircraft, ships, etc., or services, intangible products like software, technology transfer, licenses, patents or other intellectual properties purchased or acquired for the use of government. ये सब include है goods, जो definition of goods है under GFR 143. But excludes books, publications, periodicals, etc. for a library. You see the red mark already I have given. तो वो definition of goods में नहीं आता है ये सब articles. The term goods also includes works and services like transportation, insurance, installation. ये भी included है goods में. Commissioning, training and maintenance. तो ये सब include है, मगर books, publications, periodicals, etc. for a library ये include नहीं है. बहुत important है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे. GFR डैश contain definition of goods. It is Rule 143.
जो डेफिनेशन ऑफ गुड्स क्या गुड्स में इंक्लूड है क्या नहीं है अभी हम डिस्कस किया. सो आंसर इज बी डी, इट इज़ रूल 143. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. डैश procuring goods in public interest shall have the responsibility and accountability to bring efficiency, economy and transparency in matters relating to public procurement. 4 choices given. Authority delegated with the financial powers, accounts officer, audit officer, none of the above. Answer is bit A. The particular authority who has financial power, okay, in public interest, he or she procure goods for the procuring entity, and it means responsibility, accountability to bring efficiency, economy and transparency in matters relating to public procurement. Clear? So answer is bit A. Okay, the authority who has financial power, okay, he or she has responsibility and accountability to procure goods for the concerned entity, for the concerned public entity in public interest. Clear? Answer is bit A, authority delegated with the financial powers. Question number 7. While making a public procurement, the description of the subject matter should not contain which of the following? Quantity of goods to be procured, a complete schedule of procurement cycle, technical specifications, a particular trademark, trade name or brand. Answer is bit D. जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स है उसमें क्लियरली मेंशन होता है, इट इज़ रिलेटेड द एस्टिमेट ऑफ गुड्स, क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी प्रोक्योर्ड, कितना क्वांटिटी का गुड प्रोक्योर किया जाएगा. एक कंप्लीट शेड्यूल दिया जाता है फॉर प्रोक्योरमेंट साइकिल, पूरा टाइमिंग दिया जाता है, उसमें कौन सा टाइम में कितना क्वांटिटी का गुड प्रोक्योर होगा. टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस देखा जाता है गुड्स का, मगर पर्टिकुलर ट्रेडमार्क मेंशन नहीं होगा. पर्टिकुलर ट्रेडमार्क, ट्रेड नेम और ब्रांड ये नहीं होगा. आप देख लीजिए फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल फाइनेंशियल रूल 144, GFR 144 में देख लीजिए जनरल फंडामेंटल रूल्स फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स क्लियरली मेंशन है. वहाँ पर जब बिडिंग डॉक्यूमेंट्स इनवाइट किया जाएगा उसमें मेंशन नहीं है कि किस तरीके का ट्रेडमार्क और ट्रेड नेम और ब्रांड का गुड चाहिए, ये मेंशन नहीं होगा. राइट, आंसर इज बिट डी. चलो क्वेश्चन नंबर 8. इन केस ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट, care should also be taken to avoid purchasing quantities in excess of requirement to avoid dash. 4 choices given. Transportation cost, inventory carrying cost, opportunity cost, surplus cost. Answer is bit B, inventory carrying cost. जितना क्वांटिटी चाहिए अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द डिपार्टमेंट और अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द मिनिस्ट्री और अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ऑफिस, द क्वांटिटी ऑफ गुड्स कैन बी प्रोक्योर्ड. ओके, if excessive quantity of goods procured, then definitely the concerned entity will bear inventory carrying cost. उसको रखने के लिए carrying cost bear करना पड़ेगा, इसलिए जो जितनी ज़रूरत है उतना ही गुड्स को प्रोक्योर करना चाहिए. तो आंसर इज बिट बी. सो केयर should also be taken to avoid purchasing quantities in excess of requirement to avoid inventory carrying cost. Answer is bit B. Question number 9. Dash shall prepare annual procurement plan before the commencement of the year and the same should also be placed on their website. 4 choices given. Procuring authority, liaison officer, ministries, departments or competent authority. Answer is bit C, ministries or departments. Concerned department or concerned ministry before commencement of the year वो annual procurement plan prepare करते हैं और उनका वेबसाइट में उसको प्लेस करते हैं कि इतना प्रोक्योर किया जाएगा, इतना क्वांटिटी का गुड्स प्रोक्योर किया जाएगा. तो इट इज़ एवरीथिंग कंप्लीटेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ईयर. सो बेसिकली जस्ट यू रिमेंबर, प्रिपेयर एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान बाय द मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स. क्लियर, आंसर इज बिट सी. क्वेश्चन नंबर 10. Which fundamental principle is essential for an authority delegated with financial powers
for procuring goods in public interest. 4 choices given: responsibility and accountability, fair and equitable treatment of suppliers, promotion of competition in public procurement. D, all of the above. जनरल फाइनेंशियल रूल 144 में देख लीजिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल से क्लियरली मेंशन किया गया है कि द अथॉरिटी मस्ट हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. द अथॉरिटी हु हैज फाइनेंशियल पावर in public interest, he or she must procure goods according to the need of the department or according to the need of the office. So the authority must have responsibility and accountability, must maintain transparency, and always procure goods in least price. So फर्स्ट वन इज करेक्ट वन. फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ सप्लायर, सभी सप्लायर्स को इक्वली ट्रीट करना है और फेयरली ट्रीट करना है. और प्रमोशन ऑफ कंपटीशन इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट, कैसे कंपटीशन बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बिडर्स अप्लाई करेंगे, इसके लिए एडवर्टाइजमेंट का ज़रूरत है. और जो टर्म्स एंड कंडीशंस में ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं रखना चाहिए, और जो प्राइस होगा वो रीज़नेबल होगा इन कंपैरिजन टू द मार्केट प्राइस, ये सबको देखना पड़ता है. तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में क्लियरली मेंशन है कि जो प्रोक्योरिंग अथॉरिटी है, ही और सी मस्ट हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी टू प्रोक्योर गुड्स विथ ट्रांसपेरेंसी, विथ एफिशिएंसी, विथ इकोनॉमी, एंड ऑलवेज प्रोक्योर गुड्स इन लीस्ट कॉस्ट. ओके, एंड फेयरली एंड इक्वली ट्रीटमेंट ऑफ सप्लायर्स एंड ऑल्सो प्रमोशन ऑफ कंपटीशन इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट. सभी करेक्ट है. आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव. इसको थोड़ा हम एक्सप्लेन करेंगे. फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक बाइंग फॉर ऑल प्रोक्योरमेंट्स इंक्लूडिंग प्रोक्योरमेंट ऑफ वर्क्स. एवरी अथॉरिटी डेलीगेटेड विद द फाइनेंशियल पावर्स ऑफ प्रोक्योरिंग गुड्स इन पब्लिक इंटरेस्ट shall have the responsibility and accountability to bring efficiency, economy and transparency in matters relating to public procurement. फर्स्ट है राइट. जो प्रोक्योरिंग अथॉरिटी है, जिसके पास फाइनेंशियल पावर है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका अकाउंटेबिलिटी है. ओके, वो थ्रू ट्रांसपेरेंसी, थ्रू इकोनॉमी, थ्रू एफिशिएंसी, ही और सी मस्ट प्रोक्योर द गुड्स ओके अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट in case of public interest. Second one, and for fair and equitable treatment of suppliers, जो भी bidders अप्लाई किया है बिडिंग के लिए, सबको इक्वली ट्रीट करना है और सभी बिड्स को ठीक से एवेलुएट करना है बिफोर फाइनलाइज द कॉन्ट्रैक्ट. एंड ऑल्सो प्रमोशन ऑफ कंपटीशन इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट, कैसे पब्लिक प्रोक्योरमेंट में ज़्यादा कंपटीशन होगा उसको भी ध्यान देना है. राइट, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आप देख लीजिए, जनरल फाइनेंशियल रूल 144 में है. चलो नेक्स्ट. डैश रूल ऑफ जीएफआर कंटेन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक बाइंग फॉर ऑल प्रोक्योरमेंट्स इंक्लूडिंग प्रोक्योरमेंट ऑफ वर्क्स. अभी मैं बताया कि रूल 144 जीएफआर 144 में क्लियरली मेंशन है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स. ओके, कौन सा प्रिंसिपल से कैसे गुड्स को प्रोक्योर किया जाएगा, जो प्रोक्योरिंग अथॉरिटी का रोल क्या है. राइट, तो क्वेश्चन नंबर 11 आंसर इज बिट बी. चलो क्वेश्चन नंबर 12. डैश एंश्योर द पब्लिसिटी ऑफ आइटम्स थ्रू जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम फॉर पर्सपेक्टिव सप्लायर्स. 4 choices given: जेम एसपीवी, सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टर ऑफ स्टोर्स एंड स्टेशनरीज, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. आंसर इज जेम एसपीवी, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस स्पेशल पर्पज व्हीकल. कि जो जेम एसपीवी है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सप्लायर्स को रजिस्टर्ड करेगा और वो रजिस्टर्ड सप्लायर्स कॉमन गुड्स वो सप्लाई करेंगे सब गवर्नमेंट एंटिटीज़ को. राइट, तो जेम एसपीवी के ऊपर थोड़ा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है, आप देख लीजिए. आफ्टर अमेंडमेंट द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस स्पेशल पर्पज व्हीकल जेम एसपीवी हैज़ बीन सेटअप टू डेवलप, मैनेज एंड मेंटेन द जेम प्लेटफॉर्म. तो जेम प्लेटफॉर्म को अभी जेम एसपीवी जनरल स्पेशल पर्पज व्हीकल मेंटेन कर रहा है. सो ये जेम एसपीवी ये सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है एंड नॉन प्रॉफिट कंपनी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है
to develop, manage and maintain the GeM platform. Next part, the GeM SPV would provide an end-to-end online marketplace for central and state government ministries, departments, public sector undertakings, autonomous institutions and local bodies for procurement of common use goods and services in a transparent and efficient manner. जो भी common goods चाहिए, जो common services चाहिए, जो गवर्नमेंट एंटिटीज़ है, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस, लोकल बॉडीज़ इंस्टीट्यूशंस, वो कॉमन गुड्स को प्रोक्योर करेंगे जेम पोर्टल से. विद दिस डिसीजन द कंपनी वुड रिप्लेस द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल. पहले DGS&D जेम पोर्टल को कंट्रोल करता था. अभी जेम SPV जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका एम प्रॉफिट नहीं है और वो जेम पोर्टल को मैनेज करता है और सप्लायर्स को रजिस्टर्ड करता है, उनका पास्ट एक्सपीरियंस, उनका मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी, उनका फाइनेंशियल एबिलिटी, उनका डिलीवरी कैपेसिटी, ये सब देख के उनको रजिस्टर्ड करता है और पूरा मैनेज करता है जेम पोर्टल को, जिसमें कॉमन गुड्स मिलता है. ओके, डिफरेंट गवर्नमेंट एंटिटीज़ को. सो ये रिप्लेस किया है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल. पहले DGS&D जेम पोर्टल को कंट्रोल करता था, अभी जेम SPV कंट्रोल कर रहा है, विच इज अंडर द कॉमर्स मिनिस्ट्री. राइट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉमन यूज गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल ऑन जेम आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोक्योर्ड मैंडेटोरीली थ्रू जेम एज पर जनरल फाइनेंशियल रूल व GFR रूल. इट इज़ 149. जो जेम पोर्टल के ऊपर है ना, वो जनरल फाइनेंशियल रूल 149 में मेंशन है, GFR 149 में जेम पोर्टल के ऊपर मेंशन है. तो जो भी पब्लिक प्रोक्योरिंग एंटिटीज़ है, वो जो कॉमन गुड्स है वो मैंडेटोरीली वो प्रोक्योर करेंगे जेम पोर्टल से. राइट. जेम पोर्टल में रजिस्टर्ड सप्लायर्स है, तो उसके बाद जेम पोर्टल में जो लिमिट है मैं बताऊंगा. तो अभी आपको याद रखना है, जो कॉमन यूज गुड्स है, जो पब्लिक एंटिटीज़ है, वो कॉमन गुड्स को जेम पोर्टल से खरीदेंगे और ये मैंडेटोरी है. जो गुड्स नहीं है जेम पोर्टल में तो वो बाहर से टेंडर करके खरीदेंगे, मगर जो कॉमन गुड्स जेम पोर्टल में है वो कंपल्सरीली जेम पोर्टल से खरीदेंगे. राइट. तो ये 149 में मेंशन है GFR. तो आंसर इज बिट C. चलो क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे. अभी आ गया जेम पोर्टल के ऊपर. द गवर्नमेंट प्रोक्योरिंग एंटिटी परचेज गुड्स अप टू डैश फ्रॉम एनी रजिस्टर्ड सप्लायर ऑन जेम. जो भी रजिस्टर्ड सप्लायर्स ऑन जेम में है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल में है, तो उसमें कितना अमाउंट तक कोई भी रजिस्टर्ड सप्लायर से उसको ख़रीदा जा सकता है. तो इट इज़ ₹25,000. ओके, इफ़ वर्थ ऑफ द कमोडिटी इज़ अप टू ₹25,000, तो कोई भी रजिस्टर्ड सप्लायर से उसको खरीदा जा सकता है. द गवर्नमेंट प्रोक्योरिंग एंटिटी परचेज गुड्स अप टू ₹25,000 फ्रॉम एनी रजिस्टर्ड सप्लायर ऑन जेम. इट इज आंसर इज बिट B. ये आफ्टर अमेंडमेंट जो अमेंडमेंट के बाद उसको मैं, ये पूरा लेटेस्ट है, तो आपको कोई कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है. चलो क्वेश्चन नंबर 15 को चलेंगे. अबव ₹25,000 एंड अप टू ₹5 लाख थ्रू द जेम सेलर हैविंग लोएस्ट प्राइस अमोंग्स द अवेलेबल सेलर्स ऑफ डैश डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स. 4 चॉइसेस है, एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 3, एटलीस्ट 4, एटलीस्ट 5. आंसर इज बिट B, एटलीस्ट 3. सपोज वर्थ ऑफ कमोडिटी इट इज़ अबव ₹25,000 एंड अप टू ₹5 लाख. इसको जेम पोर्टल से खरीदा जाएगा जिस गुड का वर्थ है अबव ₹25,000 एंड अप टू ₹5 लाख. तो इस केस में एटलीस्ट 3 रजिस्टर्ड सप्लायर्स को लिया जाएगा. एटलीस्ट 3 रजिस्टर्ड सप्लायर्स में जो लिस्ट प्राइस में उसको बेचेगा उससे ही उसको प्रोक्योर किया जाएगा. मगर उसमें जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स है उनमें से एटलीस्ट 3 रजिस्टर्ड सप्लायर्स को चूज किया जाएगा. ओके, मगर यहाँ पर जो लिमिट है उसको मेंशन करना है. क्लियर. जब वर्थ ऑफ कमोडिटी इट इज अबव ₹25,000 एंड अप टू ₹5 लाख. ओके, द आंसर इज बिट B, एटलीस्ट 3. नेक्स्ट, गवर्नमेंट प्रोक्योरिंग एंटिटी परचेज अबव ₹5 लाख वर्थ ऑफ गुड्स. जब ये वर्थ ऑफ गुड्स अबव 5 लाख होगा और हम उसको जेम पोर्टल से खरीदेंगे थ्रू द डैश फ्रॉम द जेम रजिस्टर्ड सप्लायर. अगेन गवर्नमेंट प्रोक्योरिंग एंटिटी परचेज अबव ₹5 lakh worth of goods through the dash from the GeM registered supplier. It is reverse auction tool.
जो ऑनलाइन बोली होता है, ऑनलाइन बिडिंग, जो ऑनलाइन बोली से इसको खरीदा जाएगा जब वर्थ ऑफ गुड्स अबव रुपीज़ 5 लाख होगा और उसको हम जेम पोर्टल से खरीदेंगे। तो आंसर इज बिट ए, रिवर्स ऑक्शन टूल। तो जो 14, 15, 16 था, जो जेम पोर्टल से हम गुड्स को जो प्रोक्योर करेंगे उसका लिमिट को मैं क्लैरिफाई किया, उसमें कोई कन्फ्यूजन होने का ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16, राइट। एनी रजिस्टर्ड सप्लायर अप टू रुपीज़ 25,000 up to rupees 25,000 worth of goods can be purchased from the GEM portal from any registered supplier. Above rupees 25,000 and up to 5 lakh worth of goods, choose 3 registered suppliers and who sell the goods at list price. Okay, from this supplier, okay, the procuring authority can purchase the goods. Next one, if worth of goods above rupees 5 lakh, देन थ्रू रिवर्स ऑक्शन टूल, जो ऑनलाइन बिडिंग होता है, जो ऑनलाइन बोली होता है, उससे खरीदा जाएगा जेम पोर्टल से। चलो क्वेश्चन नंबर 17, इन व्हिच रूल ऑफ जीएफआर मेंशन द अथॉरिटीज कॉम्पिटेंट टू परचेज गुड्स। तो कौन सा जनरल फाइनेंशियल रूल में क्लियरली मेंशन किया गया है अथॉरिटीज़ के ऊपर कॉम्पिटेंट टू परचेज गुड्स? इट इज जीएफआर 145। अब जीएफआर 145 में जैसे बताया 143 गुड्स के ऊपर है, 144 फंडामेंटल रूल्स के ऊपर है और 145 में मेंशन है द अथॉरिटीज कॉम्पिटेंट टू परचेज गुड्स। सो आंसर इज बिट सी। क्वेश्चन नंबर 18, अंडर रूल 147 ऑफ जीएफआर द मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स हैव बीन डेलीगेटेड फुल पावर्स टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट्स फॉर प्रोक्योरमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर नॉट अवेलेबल ऑन जेम पोर्टल। Bit A correct one, bit B incorrect one, bit C ministries having power to procure goods on own arrangement if these goods available on GEM portal but not departments, bit D none of the above। यहाँ पर क्लियरली आपको जो अमेंडमेंट के बाद इस पर क्लियरली मेंशन है कि जो कॉमन गुड्स है जेम पोर्टल में, तब डिफरेंट एंटिटीज़ को, पब्लिक प्रोक्योरिंग एंटिटीज़ को, उसको कॉमन गुड्स को जेम पोर्टल से खरीदना है और ये मैंडेटरी है। जो गुड्स जेम पोर्टल में नहीं है तब मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स और सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स, उनके पास पावर है, वो ओन अरेंजमेंट से गुड्स को प्रोक्योर करेंगे। जो गुड्स जेम पोर्टल में अवेलेबल नहीं है मगर जेम पोर्टल में अवेलेबल है मीन्स उसको मैंडेटरीली जेम पोर्टल से खरीदना है। जो जेम पोर्टल में उपलब्ध नहीं है तब मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स और सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स वो ओन अरेंज करेंगे गुड्स को प्रोक्योर करने के लिए। और ये स्टेटमेंट जो है एब्सोल्युटली करेक्ट है। आंसर इज बीट ए, करेक्ट वन, राइट। यह रूल जीएफआर 147 में है। चलो क्वेश्चन नंबर 19, द जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 जो 7th पे कमीशन के बाद केम इन टू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 8 मार्च 2017। आंसर इज बीट बी। तो जनरल फाइनेंशियल रूल 2017, ये जो रूल्स को मॉडिफाई किया गया आफ्टर 7th पे कमीशन, तो ये कब से इफेक्ट हुआ ना? 8 मार्च 2017। आंसर इज बिट बी। चलो क्वेश्चन नंबर 20, डैश विल एंश्योर एडिक्वेट पब्लिसिटी इंक्लूडिंग पीरियोडिक एडवर्टाइजमेंट ऑफ द आइटम्स टू बी प्रोक्योर्ड थ्रू जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस फॉर द प्रोस्पेक्टिव सप्लायर्स एंड ऑल्सो चेक द क्रीडेंशियल ऑफ द सप्लायर्स ऑन जेम। तो ये इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जो जेम एसपीवी है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस स्पेशल पर्पज व्हीकल का काम है कि वो इट मीन्स जेम एसपीवी मेक प्रॉपर अरेंजमेंट रिलेटेड टू द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द आइटम्स सो दैट डिफरेंट गवर्नमेंट एंटिटीज़ उनको पता चलेगा कि हाँ ये सब गुड्स, कॉमन गुड्स जेम पोर्टल में उपलब्ध है। ओके, और वो भी सप्लायर्स का क्रीडेंशियल्स को चेक करेगा, सप्लायर्स को रजिस्टर्ड करेगा। ये सब जेम एसपीवी का काम है। तो आंसर इज बिट बी। क्वेश्चन नंबर 21, कुछ स्टेटमेंट्स दिया गया है, 2 स्टेटमेंट दिया गया है। कॉमन यूज गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल ऑन जेम आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोक्योर्ड मैंडेटोरीली बाय द गवर्नमेंट एंटिटीज थ्रू जेम। तो एब्सोल्युटली करेक्ट है। स्टेटमेंट 2, इन case a certain item is not available on the GEM portal, then government entity procuring this item through the local purchase committee। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। जो जेम पोर्टल में जो गुड्स अवेलेबल है तो
उसको मैंडेटरीली गवर्नमेंट एंटिटीज़ को जेम पोर्टल से खरीदना है। क्लियर, ये GFR 147 में है। सेकेंड चीज़ है, यदि जेम पोर्टल में नहीं है, ओके, इन केस ए सर्टन आइटम इज नॉट अवेलेबल ऑन द जेम पोर्टल, देन गवर्नमेंट एंटिटी प्रोक्यूरिंग दिस आइटम थ्रू द लोकल परचेज कमिटी, लोकल परचेज कमिटी से खरीद सकता है। ठीक है, तो दोनों करेक्ट है, राइट। तो यहाँ पर देखेंगे स्टेटमेंट्स क्या दिया है, तो यहाँ पर आंसर बिट सी है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन, आंसर इज बिट सी, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 22, रजिस्टर्ड सप्लायर्स आर द सप्लायर्स who have been approved by the central purchase organization as reliable sources for procurement of goods commonly required for government use। yes, ये absolutely correct है। तो ये जो correct one, no provision is there in GFR 2017, incorrect one, partially correct one, answer is B, take correct one। registered suppliers are the suppliers who have been approved by the central purchase organization as reliable sources for procurement of goods commonly required for government use। ये जो सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन है अभी JMSP भी है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस स्पेशल पर्पज व्हीकल, उसका काम है सप्लायर्स का क्रीडेंशियल्स को चेक करेगा और उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड को चेक करेगा, उनका मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी को चेक करेगा कि वो ठीक टाइम में डिलीवरी प्रोडक्ट को डिलीवरी करेंगे कि नहीं चेक करेगा, ये सब देख के उनको रजिस्टर्ड करता है। ठीक है, राइट। तो ये जो स्टेटमेंट है करेक्ट वन, आंसर इज बिट ए। चलो क्वेश्चन नंबर 23, registered suppliers are approved for dash, bit a fixed period of 1 year, a fixed period of 3 years, a fixed period between 1 to 3 years or all times to come, answer is B, bit C है, a fixed period between 1 to 3 years। जो registered suppliers है, approved suppliers है, उनको registered किया जाता है 1 to 3 years according to the nature of the commodity, nature of the commodity को देख के उनको registered किया जाता है और वो पीरियड होता है 1 to 3 ईयर्स। ओके, उसके बाद वो रिन्यू होता है, उनका परफॉर्मेंस को देख के उनको रिन्यू किया जाता है। ठीक है, तो रजिस्टर्ड सप्लायर्स आर अप्रूव्ड फॉर ए फिक्स्ड पीरियड बिटवीन 1 to 3 ईयर्स, आंसर इज बिट सी। क्वेश्चन नंबर 24, द सप्लायर्स विल बी रजिस्टर्ड फॉर ए फिक्स्ड पीरियड बिटवीन 1 to 3 ईयर्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द गुड्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द मिनिस्ट्री, नॉन ऑफ द अबव, एंड द नेचर ऑफ द गुड्स। तो नेचर ऑफ द कमोडिटी को देखकर जो सप्लायर्स है उनको रजिस्टर्ड किया जाता है और उनको कितना पीरियड के लिए रजिस्टर्ड किया जाता है ना, 1 to 3 ईयर्स। ओके, तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द गुड्स, आंसर इज बिट ए। चलो क्वेश्चन नंबर 25, क्रेडेंशियल्स, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स, पास्ट परफॉर्मेंस, आफ्टर सेल सर्विस, फाइनेंशियल बैकग्राउंड एटसेट्रा ऑफ द सप्लायर्स शुड बी केयरफुली वेरीफाइड बिफोर रजिस्ट्रेशन। मैं अभी बताया था कि जो JMSPB में जो गुड्स नहीं है उसको डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री और सबऑर्डिनेट ऑफिसेस ऑफ द डिपार्टमेंट वो टेंडर इनवाइट करते हैं और सप्लायर्स को रजिस्टर्ड करते हैं, मगर वो कुछ चीज़ को देखते हैं कि उनका क्रीडेंशियल्स को चेक करते हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी, उनका सेल्स सर्विस, उनका पास्ट एक्सपीरियंस, उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, ओके, किस तरीके का क्वालिटी ऑफ गुड को वो सप्लाई करेंगे, ओके, उनका जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, ये सबको चेक करने के बाद उनको रजिस्टर्ड किया जाता है, राइट। तो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट वन, आंसर इज बिट सी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिफोर रजिस्ट्रेशन इसको चेक करना पड़ता है। ओके, जो पर्टिकुलर सप्लायर को जो फाइनली कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा उसका पूरा चेक करने के बाद उसको फाइनली कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। क्लियर? तो क्रीडेंशियल, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, पास्ट एक्सपीरियंस, आफ्टर सेल सर्विस, फाइनेंशियल बैकग्राउंड एटसेट्रा ऑफ द सप्लायर शुड बी केयरफुली वेरीफाइड बिफोर रजिस्ट्रेशन। ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, आंसर इज बिट सी। चलो 1/4 क्वेश्चन में कंप्लीट कर दिया। प्लीज माय फ्रेंड्स, इफ you have not subscribed my channel, please subscribe my channel Asit Government Rule Guru, so that you can get notification for my upcoming videos। चलो क्वेश्चन नंबर 26 को चलेंगे। रजिस्टर्ड सप्लायर्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स है, डिपार्टमेंट, कंसर्न मिनिस्ट्री और सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स ऑफ द डिपार्टमेंट, वो कुछ सप्लायर्स को रजिस्टर्ड किया है, उनको कब रिमूव किया जाएगा? ये दो स्टेटमेंट दिया है। फेल टू अबाइड बाय द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द रजिस्ट्रेशन और सप्लाई द गुड्स ऑन टाइम, सप्लाई ऑफ सबस्टैंडर्ड गुड्स, मेक एनी फॉल्स डिक्लेरेशन टू एनी गवर्नमेंट एजेंसी,
फॉर एनी ग्राउंड विच इन द ओपिनियन ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट, ये ऑल ऑफ द अबव, ये ऑल ऑफ द अबव है, ये सभी कंडीशंस में ओके उनको रिमूव किया जाएगा। यदि वो टर्म्स कंडीशंस को अवॉइड नहीं करेंगे, यदि वो इन्फीरियर क्वालिटी गुड्स को वो सप्लाई करेंगे, कि कुछ फॉल्स डिक्लेरेशन कोई गवर्नमेंट एजेंसी को दिया है, क्लियर, कि पब्लिक इंटरेस्ट में उनका फेवर में नहीं है, तो ये सब केस में उनको रिमूव कर दिया जाता है रजिस्टर्ड सप्लायर्स को, राइट। तो आंसर इज बी टी, ऑल ऑफ द अबव। 27 को चलेंगे। अभी आउटसाइड ऑफ द जेम पोर्टल कैसे हम गुड्स को प्रोक्योर करेंगे। परचेज ऑफ गुड्स में बी मेड विदाउट इन्वाइटिंग कोटेशंस और बीड्स अप टू ए वैल्यू ऑफ डैश। विदाउट कोटेशन, आप देखिए GFR 154, जो जनरल फाइनेंशियल रूल 154 को देखिए, वहाँ पर दिया है विदाउट कोटेशन हम गुड्स परचेज कर सकते हैं, मगर जो वैल्यू होगा कितना होगा, वैल्यू ऑफ ₹25,000, ओके, वर्थ ऑफ गुड्स अप टू ₹25,000 हम विदाउट कोटेशन से उसको प्रोक्योर कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो आंसर इज बिट सी, राइट। नेक्स्ट चलेंगे, ये GFR 154 में है। क्वेश्चन नंबर 28, परचेज ऑफ गुड्स में बी मेड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ ए डेली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकल परचेज कमिटी इफ द वैल्यू ऑफ गुड्स। अभी लोकल परचेज कमिटी के बारे में आया, अभी मैं बताया था जो कॉमन गुड्स एक्चुअली जेम पोर्टल में नहीं है, जो गुड्स नहीं है, जो गुड्स एंड सर्विसेज जेम पोर्टल में नहीं है, तब कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न मिनिस्ट्री और सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स ऑफ द डिपार्टमेंट वो बिडिंग इनवाइट करते हैं और वो सप्लायर से प्रोक्योर कर सकते हैं। मगर यहाँ पर जो लोकल परचेज कमिटी होगा, जो गुड्स एक्चुअली जेम पोर्टल में नहीं है, उसको लोकल परचेज कमिटी के द्वारा उसको खरीदा जा सकता है। लोकल परचेज कमिटी में 3 मेंबर्स होते हैं एंड 3 मेंबर्स एक्चुअली अपॉइंटेड बाय द प्रोक्योरिंग अथॉरिटी, क्लियर। तो उसमें जो वैल्यू ऑफ गुड्स होगा कितना होगा, आंसर इज बिट सी, अबव ₹25,000, सॉरी इट इज आंसर डी, अबव ₹25,000 एंड अप टू ₹2,50,000। यदि वर्थ ऑफ गुड्स 25,000 से ज़्यादा होगा एंड अप टू 2.5 लाख होगा, तब लोकल परचेज कमिटी से उस गुड्स को प्रोक्योर किया जा सकता है, राइट। आंसर इज बिट डी। चलो क्वेश्चन नंबर 29, अंडर GFR डैश, इन केस ए सर्टन आइटम इज नॉट अवेलेबल ऑन द जेम पोर्टल, परचेज ऑफ गुड्स ऑन ईच ओकेजन में बी मेड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ ए डेली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकल परचेज कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ 3 मेंबर्स ऑफ एन अप्रोप्रिएट लेवल एज डिसाइडेड बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो कौन सा रूल में है, जैसे मैं बताया अभी, जो वर्थ ऑफ गुड्स है अबव ₹25,000 एंड अप टू 2.5 लाख वर्थ ऑफ गुड्स है, और वो गुड्स एक्चुअली जेम पोर्टल में नहीं है, तब उसको लोकल परचेज कमिटी के द्वारा खरीदा जाएगा। जो लोकल परचेज कमिटी में 3 मेंबर्स होते हैं, उनको जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, जो प्रोक्योरिंग अथॉरिटी है, वो एक्चुअली चूज करते हैं। ये है GFR 155 में है, विदाउट कोटेशन GFR 154 में है। जब वो वर्थ ऑफ गुड्स अप टू ₹25,000 होगा, विदाउट कोटेशन में खरीदा जा सकता है। और यहाँ पर जो लोकल परचेज कमिटी से खरीदा जाएगा उसको विथ कोटेशंस, जो 3 मेंबर्स होते हैं वो मार्केट जाते हैं, असेस करते हैं और वहाँ से कोटेशंस लाते हैं। तो कोटेशंस को एवेलुएट किया जाता है, क्योंकि उनका स्पेसिफिकेशंस को, क्वालिटी को और अदर जो उनका पास्ट एक्सपीरियंस है कि वो गुड्स को ठीक टाइम में डिलीवरी करेंगे कि नहीं, सब देखा जाता है और फाइनली चूज किया जाता है लोकल परचेज कमिटी से, उसको फिर अल्टीमेटली फाइनल किया जाता है। तो ये 155 है, ओके, GFR 155 में मेंशन है। आंसर इज बिट सी। क्वेश्चन नंबर 30, रजिस्टर्ड सप्लायर्स आर एलिजिबल फॉर कंसिडरेशन फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स थ्रू डैश। जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड सप्लायर्स है, डिपार्टमेंट के पास है कि मिनिस्ट्री के पास है कि कोई सबऑर्डिनेट ऑफिसेस ऑफ द डिपार्टमेंट है, उनके पास रजिस्टर्ड सप्लायर्स है, तो वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हैं लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में, ठीक है। तो बेसिकली आंसर इज बिट बी, रजिस्टर्ड सप्लायर्स आर एलिजिबल फॉर कंसिडरेशन फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स थ्रू लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी। तो ऑटोमेटिकली वो इट मीन्स बिडिंग में शामिल हो जाते हैं जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स है, राइट। आंसर इज बिट बी। चलो क्वेश्चन नंबर 31, जो लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी शुड बी यूज्ड फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू। जब लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी को इन्वाइट किया जाएगा तब एक्चुअली वर्थ ऑफ गुड्स कितना होगा। तो यहाँ पर जो है आंसर इज बीट बी, अबोव ₹2.5 लाख एंड अप टू ₹25 लाख,
ओके। तो अबव रुपीज़ 2.5 लाख एंड अप टू रुपीज़ 25 लाख जब वर्थ ऑफ गुड्स होगा तब लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी इनवाइट किया जाएगा। और इसमें मजा बात है कि जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स ऑलरेडी है डिपार्टमेंट के पास कि एनी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स ऑफ द डिपार्टमेंट उनके पास है रजिस्टर्ड सप्लायर्स, तो वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल है। ओके, वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल है, जो उनका बिडिंग डॉक्यूमेंट वो सबमिट करेंगे और उनसे बीड सिक्योरिटी नहीं लिया जाएगा। तो ये जो है आंसर इज बीट बी, अबव रुपीज़ 2.5 लाख एंड अप टू रुपीज़ 25 लाख तब लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी को इन्वाइट किया जाता है। आंसर इज बीट बी। चलो क्वेश्चन नंबर 32, द नंबर ऑफ सप्लायर्स इन लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी शुड बी मोर देन। तो लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में शुड बी मोर देन कितना नंबर ऑफ सप्लायर्स इन लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी शुड बी मोर देन 3, शुड बी मोर देन 3। ओके, 3 से ज़्यादा, इट मीन्स एटलीस्ट 4। तो इसको याद रखना है, आंसर इज बीट सी। तो नंबर ऑफ सप्लायर्स मोर देन 3 होना चाहिए। ओके, तब उनको एवेलुएट किया जाएगा और फाइनली कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा एक पर्टिकुलर बिडर को और सप्लायर को। तो ये दो प्रकार का आंसर होगा, मोर देन 3 और एटलीस्ट 4 जो नंबर ऑफ सप्लायर्स होंगे। क्लियर, आंसर इज बिट सी। चलो क्वेश्चन नंबर 33, इन लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में बी सेंड टू द रजिस्टर्ड सप्लायर्स फॉर द गुड्स टू बी परचेज्ड बाय। मैं वही बताया कि लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड सप्लायर्स है डिपार्टमेंट के पास कि कंसर्न मिनिस्ट्री के पास कि ऑफिस के पास रजिस्टर्ड सप्लायर्स है, तो उनको बिडिंग डॉक्यूमेंट्स भेजा जाएगा, ऑटोमेटिकली वो एलिजिबल है। तो कैसे भेजा जाएगा, यहाँ पर जो दिया है ऑप्शन स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट, कोरियर, ईमेल, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स है आइदर स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट में भेजा जाएगा कि कोरियर में कि ईमेल में, तो इसमें उनको बिडिंग डॉक्यूमेंट्स भेजा जाएगा जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स है। राइट, आंसर इज बीट डी, ऑल ऑफ द अबव। चलो क्वेश्चन नंबर 34, बीड सिक्योरिटी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बिडर्स एक्सेप्ट। किससे बीड सिक्योरिटी नहीं लिया जाएगा? तो यहाँ पर चॉइसेस देख लीजिए, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, रजिस्टर्ड सप्लायर्स विद द सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन और द कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, स्टार्टअप्स आज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन DIPP, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। ये जो ABC में है ना, उनसे बीड सिक्योरिटी नहीं लिया जाएगा। जो बीड सिक्योरिटी क्या है, जो एस्टिमेटेड वर्थ ऑफ गुड्स होता है उसका 2 to 5% बीड सिक्योरिटी लिया जाता है। बीड सिक्योरिटी इसीलिए लिया जाता है कि बीड वैलिडिटी पीरियड जब होता है, जो बीड वैलिडिटी पीरियड है वो बीड ओपनिंग डेट से फाइनल कॉन्ट्रैक्ट तक जो पीरियड होता है उसमें वो बीडिंग में कोई चेंज नहीं कर सकते, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते और वो उनका बीड को विथड्रॉ नहीं कर सकते। इसलिए एक बीड सिक्योरिटी जो सप्लायर्स है, जो बीडर्स है, वो बीड सिक्योरिटी, बीड डॉक्यूमेंट के साथ बीड सिक्योरिटी देते हैं। तो बीड सिक्योरिटी बेसिकली 2 to 5% ऑफ एस्टिमेटेड ऑफ गुड्स का होता है। मगर उनसे ये जो है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस की जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स है, कि जो स्टार्टअप इंडस्ट्रीज बेसिकली जो है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, उनसे बीड सिक्योरिटी जिसको अर्नेस्ट मनी कहा जाता है उनसे नहीं लिया जाएगा। बीड सिक्योरिटी का अल्टरनेट नेम है अर्नेस्ट मनी, तो उनसे नहीं लिया जाएगा। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों से बीड सिक्योरिटी नहीं लिया जाएगा। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन नंबर 35, ऑल द आइटम्स ऑफ टेक्सटाइल्स रिक्वायर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इट शैल बी मैंडेटरी टू मेक प्रोक्योरमेंट ऑफ डैश फ्रॉम अमोंगस्ट आइटम्स ऑफ हैंडलूम ओरिजिन फॉर एक्सक्लूसिव परचेज फ्रॉम KVIC एंड हैंडलूम क्लस्टर्स। तो ये रिलेटेड जो है टेक्सटाइल्स के ऊपर है। तो ये जो आंसर है एटलीस्ट 20%, आंसर इज बीट सी। Of all items of textiles required by the central government departments, it shall be mandatory to make procurement of at least 20% from amongst items of handloom origin for exclusive purchase from KVIC and or handloom clusters. Clear? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर इज बीट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, अबव 5 lakhs गवर्नमेंट बायर परचेज थ्रू JAM यूजिंग ऑनलाइन ई-बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन टूल बट एक्सेप्ट द सेक्टर। जो JAM पोर्टल में अभी हम डिस्कस किया, जब वर्थ ऑफ गुड्स अबव 5 लाख होता है तब रिवर्स ऑक्शन टूल को फॉलो किया जाता है, जो ऑनलाइन बिडिंग होता है, ऑनलाइन बोली से उसको खरीदा जाएगा। मगर यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है अबव 5 लाख हो जाता है गवर्नमेंट बायर परचेज थ्रू JAM यूजिंग ऑनलाइन ई बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन टूल बट एक्सेप्ट द सेक्टर। कौन सा सेक्टर इसमें नहीं होगा? मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल्स, नॉन ऑफ द अबव। आंसर इज बीट बी, ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स में अभी वही पुराना लिमिट है, ये अमेंडमेंट के बाद हुआ है। जो JAM पोर्टल में जो लिमिट है
वो अमेंडमेंट के बाद चेंज हुआ है, तो उसमें ऑटोमोबाइल्स में ये नहीं होगा। ऑटोमोबाइल्स के लिए यहाँ पर क्लियरली मैं मेंशन किया, ऑटोमोबाइल्स अबव ₹30 लाख लिमिट इज एग्जिस्ट लाइक बिफोर अमेंडमेंट। जो अमेंडमेंट के पहले जो अबव ₹30 लाख था वो अभी भी एग्जिस्ट है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 37, अभी एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी को आएंगे। जो एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी शुड बी यूज्ड फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू। जो वर्थ ऑफ गुड्स कितना होगा जिसमें हम एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी को जाएंगे। जो प्रोक्योरिंग एंटिटी है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री और एनी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स ऑफ द डिपार्टमेंट, वो जो वर्थ ऑफ गुड्स कितना होगा, जो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द गुड्स कितना होगा, जो एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी में जाएगा। एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी में बिडर्स को इन्वाइट किया जाएगा। तो यहाँ पर है इट इज़ ₹25 लाख एंड अबव, क्योंकि लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में आपको पता होगा एस्टिमेटेड ऑफ गुड्स इट इज़ अबव 2.5 लाख एंड इट इज़ अप टू 25 लाख। मगर जो एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी होगा वो ₹25 लाख एंड अबव। आंसर इज बीट ए, राइट। चलिए, इन केस ऑफ एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी ऑर्डिनरीली द टाइम अलाउड फॉर सबमिशन ऑफ बिड्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस इनवाइटिंग टेंडर और अवेलेबिलिटी ऑफ बिडिंग डॉक्यूमेंट फॉर सेल विच एवर इज लेटर शुड बी डैश। तो मिनिमम पीरियड कितना दिया जाएगा जब बीड डॉक्यूमेंट, इट मीन्स बीडिंग को इनवाइट किया गया, उसका नोटिफिकेशन कर दिया कंसर्न डिपार्टमेंट ने, मिनिस्ट्री ने, और कोई यानी सबऑर्डिनेट ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट वो नोटिफिकेशन कर दिया और बीडिंग डॉक्यूमेंट को सेल किया, कोई भी जो विच एवर इज लेटर, तो शुड भी कितना मिनिमम पीरियड देना चाहिए। मिनिमम आपको 3 वीक्स देना चाहिए, ठीक है, जो बीडिंग डॉक्यूमेंट को सबमिट करने के लिए। ओके, जो बीडर सप्लायर्स है, जो इट मीन्स वो बीड इट मीन्स उनका बीडिंग डॉक्यूमेंट को सबमिट करना चाहते हैं, तो उनको मिनिमम पीरियड मिनिमम 3 वीक्स देना चाहिए। तो आंसर इज बीट ए, राइट। चलो, क्वेश्चन नंबर 39, व्हेन द डिपार्टमेंट कंटेम्पलेट्स ऑब्टेनिंग बिड्स फ्रॉम अब्रोड द मिनिमम पीरियड शुड बी केप्ट एज डैश फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन बिडर्स। कभी कभी क्या है, डिपार्टमेंट सोचता है कि जो ऑब्टेनिंग बिड्स फ्रॉम अब्रोड, कभी कभी सोचता है कि जब डिपार्टमेंट देखता है कि एक पर्टिकुलर जो कमोडिटी वो एडिक्वेट क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है इंडिया में, और उसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, कि इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस अच्छा नहीं है इंडिया में, तब वो इनवाइट किया जाता है, फ्रॉम अब्रोड से बिडिंग डॉक्यूमेंट इनवाइट किया जाता है। तो यहाँ पर फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन बिडर्स को कितना मिनिमम टाइम दिया जाता है, तो ये है मिनिमम 4 वीक्स दिया जाता है। ओके, तो when the department contemplates obtaining bids from abroad, the minimum period should be kept as minimum 4 weeks for both domestic and foreign bidders. Answer is bit B. चलो, क्वेश्चन नंबर 40 को चलेंगे। In special case, the estimated value of the procurement is more than ₹25 lakh through limited tender inquiry on the following conditions. तो कभी कभी क्या है, हम जानते हैं कि जब 25 लाख एंड अबव वर्थ ऑफ गुड्स होगा, एस्टिमेटेड ऑफ गुड्स होगा, तब एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी में बिडिंग इनवाइट किया जाएगा। और कभी कभी क्या है, जो एस्टिमेटेड ऑफ गुड्स है वो अबव 25 लाख है, मगर फिर भी उसको लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में इनवाइट किया जाता है बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को। तो एक यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स है। इन अर्जेंट कंडीशन द डिपार्टमेंट डज नॉट वांट टू मेक एडिशनल एक्सपेंडिचर टू प्रोक्योर द गुड्स, और सेकेंड स्टेटमेंट है इट विल नॉट बी इन पब्लिक इंटरेस्ट टू प्रोक्योर द गुड्स थ्रू एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसी दोनों कंडीशन में कभी कभी क्या है, जो एस्टिमेटेड अब गुड्स है अबव 25 लाख है, मगर उसको लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में इनवाइट किया जाता है। उसको बेसिकली किस में इनवाइट करना था, एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी में, मगर एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी में इनवाइट नहीं किया जाएगा, क्योंकि कभी कभी इमरजेंसी कंडीशन में वो डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न मिनिस्ट्री एडिशनल एक्सपेंडिचर बियर नहीं करना चाहता है, और कभी कभी पब्लिक इंटरेस्ट भी फॉर में नहीं है कि उसको एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी में इन्वाइट किया जाए, राइट। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखेंगे आंसर, तो यहाँ पर जो आंसर है बोथ द स्टेटमेंट्स करेक्ट वन, आंसर इज बिट बी, राइट। चलो, क्वेश्चन नंबर 41, द बीडर्स आर रिक्वायर्ड टू फर्निश अर्नेस्ट मनी और बीड सिक्योरिटी। जो अर्नेस्ट मनी है वही बीड सिक्योरिटी है। जो बीड सिक्योरिटी का अल्टरनेट नेम है अर्नेस्ट मनी है, विद इन बीड वैलिडिटी पीरियड, बिकॉज जो बीड वैलिडिटी पीरियड होता है, बीड वैलिडिटी पीरियड क्या है, बीड ओपनिंग डेट। तो बीडिंग डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया तो उसका क्लोजिंग डेट हो गया, क्लोजिंग बीड ओपन होगा, जो जो बीडर्स अप्लाई किया है उनका बीडिंग डॉक्यूमेंट्स को ओपन किया जाएगा, उसको एवेलुएट किया जाएगा, जो क्राइटेरियाज है उसको एवेलुएट किया जाएगा, और फाइनली एक बीडर को और एक सप्लायर को फाइनली कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा।
तो उसी पीरियड को हम बीड वैलिडिटी पीरियड बोलते हैं। जो बीड ओपनिंग डेट से लेकर कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कॉन्ट्रैक्ट तक जो पीरियड है वो बीड वैलिडिटी पीरियड है। तो द बीडर्स आर रिक्वायर्ड टू फर्निश अर्नेस्ट मनी और बीड सिक्योरिटी विद इन बीड वैलिडिटी पीरियड बिकॉज हम जानते हैं कि क्यों बीड सिक्योरिटी सबमिट करते हैं बीडर्स, क्यों अर्नेस्ट मनी वो बीडिंग डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट करते हैं, क्योंकि जो बीड वैलिडिटी पीरियड के अंदर वो कुछ जो बीडिंग डॉक्यूमेंट्स में कुछ अल्टरनेट नहीं, कुछ चेंजेस, कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, और उसी बीड वैलिडिटी पीरियड में जब बीडिंग को एवेलुएट किया जाता है वो उनका बीड को वो विथड्रॉ नहीं करेंगे, इसीलिए उनको बीड सिक्योरिटी देना पड़ता है। जो एस्टिमेटेड ऑफ गुड्स है उसका 2 to 5% देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट बीडर्स में विथड्रॉ इट्स बीड और बीडर्स में अल्टर इट्स बीड, बीड सी आइदर ए और बी और बीड डी नॉन ऑफ द अबव, आंसर इज सी आइदर ए और बी। तो कभी कभी क्या है वो उनका बीड को विथड्रॉ कर सकते हैं और कभी कभी उनका बीडिंग में वो कुछ अल्टरनेट कुछ इट मीन्स कुछ अल्टर कर सकते हैं और कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और कुछ चेंज कर सकते हैं। तो वो करेंगे तो उनका बीड सिक्योरिटी को उनको नहीं मिलेगा, उनका बीड सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाएगा, इसलिए उनसे बीड सिक्योरिटी लिया जाता है। ये फास्ट दोनों करेक्ट है, इसलिए बीड सिक्योरिटी और अर्नेस्ट मनी लिया जाता है। आंसर इज बीड सी। चलो क्वेश्चन नंबर 42, द अमाउंट ऑफ बीड सिक्योरिटी शुड ऑर्डिनरली रेंज बिटवीन, मैं बोल चुका हूँ, इट इज 2 to 5% ऑफ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द गुड्स टू बी प्रोक्यूर्ड। ये जो 2 to 5% है उसको देखा जाता है कि गुड्स का जो कमर्शियल कंडीशंस क्या है, उसका मार्केट कंडीशंस को देख के बीड सिक्योरिटी को फाइनलाइज किया जाता है। ओके, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द मार्केट एंड अकॉर्डिंग टू द कमर्शियल कंडीशन ऑफ द गुड्स। तो आंसर इज बीट बी, 2 to 5% ऑफ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द गुड्स टू बी प्रोक्यूर्ड। तो बीड सिक्योरिटी बेसिकली 2 to 5% ऑफ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द गुड्स होता है, राइट। वो बीडिंग डॉक्यूमेंट के साथ बीड सिक्योरिटी को देना पड़ता है। आंसर इज बीट बी। क्वेश्चन नंबर 43, जो बीड सिक्योरिटी में बी एक्सेप्टेड इन द फॉर्म ऑफ, जो बीड सिक्योरिटी होता है जो 2 to 5% ऑफ द एस्टिमेटेड गुड्स देना पड़ेगा बीडिंग डॉक्यूमेंट के साथ, वो कैसे दिया जाएगा? अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट, बैंकर्स चेक, बैंक गारंटी फ्रॉम एनी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स और पेमेंट ऑनलाइन इन एन एक्सेप्टेबल फॉर्म और एनी ऑफ द अबव। एनी ऑफ द अबव आंसर है। चाहे वो बैंक अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट से दे सकते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट से दे सकते हैं, बैंकर्स चेक से दे सकते हैं, बैंक गारंटी फ्रॉम एनी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, और कोई पेमेंट ऑनलाइन में किया है इन एक्सेप्टेबल फॉर्म, तो एनी ऑफ द अबव में वो बीड सिक्योरिटी सबमिट कर सकते हैं बीडर्स। आंसर इज बीट ई। क्वेश्चन नंबर 44, बीड सिक्योरिटी नॉर्मली रिमेन्स वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ डैश बियॉन्ड द फाइनल बीड वैलिडिटी पीरियड। जो फाइनल बीड वैलिडिटी पीरियड क्या है? जब कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो जाता है, एक पर्टिकुलर बीडर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है, तो उसका कितने दिन के बाद एक्चुअली जो बीड सिक्योरिटी जो वैलिड होता है फॉर ए पीरियड डैश बियॉन्ड द फाइनल बीड वैलिड पीरियड, तो बेसिकली आंसर है बीट सी, बेसिकली आंसर है बीट बी, 45 डेज। बीड सिक्योरिटी नॉर्मली रिमेन्स वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 45 डेज बियॉन्ड द फाइनल बीड वैलिडिटी पीरियड। ओके, जब फाइनल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा एक सप्लायर और बीडर को, उससे आप जो बीड सिक्योरिटी जो वैलिड होगा उससे आप काउंट कर लो 45 डेज। तो ठीक है, इट इज़ फॉर ए पीरियड ऑफ 45 डेज बियॉन्ड द फाइनल बीड वैलिडिटी पीरियड। तो जो बीड सिक्योरिटी के ऊपर है वो GFR 170 में है, जनरल फाइनेंशियल रूल 170 में, आप देख लीजिए। बीड सिक्योरिटी ऑफ अनसक्सेसफुल बीडर शुड बी रिटर्न टू देम। जो अनसक्सेसफुल बीडर्स है, एक ही पर्टिकुलर बीडर को कि सप्लायर को इट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, तो जो अनसक्सेसफुल बीडर्स है उनका बीड सिक्योरिटी को कब रिटर्न किया जाएगा? यही है, एट द अर्लीस्ट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द फाइनल बीड वैलिडिटी, लेटेस्ट ऑन और बिफोर द 30th डे आफ्टर द अवार्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बीड सी आइदर ए और बी, बीड डी नॉन ऑफ द अबव। आंसर इज बीड सी, आइदर ए और बी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो अनसक्सेसफुल बीडर्स है उनका बीड सिक्योरिटी को रिटर्न कर दिया जाएगा एट द अर्लीस्ट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द फाइनल बीड वैलिडिटी। जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फाइनल हो गया, तो उसके बाद इमीडिएटली आज सुन आज पॉसिबल उनको रिटर्न कर दिया जाएगा। और एक ऑप्शन है लेटेस्ट ऑन और बिफोर द 30th डे आफ्टर द अवार्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो आइदर ए और बी, आंसर इज बीट सी, राइट। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 46, इन प्लेस ऑफ ए बीड सिक्योरिटी द मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में रिक्वायर बीडर्स टू साइन ए बीड सिक्योरिंग डिक्लेरेशन एक्सेप्टिंग द सस्पेंशन इन द फॉलोइंग कंडीशंस। उनको एक डिक्लेरेशन साइन करना पड़ता है। Okay, in place of a bid security, the ministries or departments may require bidders to sign a
बीड सिक्योरिंग डिक्लेरेशन एक्सेप्टिंग द सस्पेंशन इन द फॉलोइंग कंडीशंस। तो क्या है, इफ़ दे विथड्रॉ बीड्स ड्यूरिंग बीड वैलिडिटी, तो उनको वो जो साइन करेंगे, ठीक है, जो बीड सिक्योरिंग डिक्लेरेशन देंगे उसमें ये सब होगा तो उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो इसलिए देखिए कंडीशन क्या है, इफ़ दे विथड्रॉ बीड्स ड्यूरिंग बीड वैलिडिटी पीरियड, modify their bids during bid validity period, if they are awarded the contract and they fail to sign the contract, to submit a performance security before the deadline defined in the request for bids document, any of the above condition। इसमें सभी में यदि वो बीड, जो बीड वैलिडिटी पीरियड के अंदर वो बीड को विथड्रॉ करते हैं तो उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। यदि वो बीड वैलिडिटी पीरियड के अंदर बीड्स में कुछ चेंजेस कर देते हैं, कुछ ऑल्टर करते हैं, यदि उनको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होता है और वो इट मीन्स साइन नहीं करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट को, और जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी उनको देना पड़ता है वो डेडलाइन के बिफोर दे देते हैं, ये सभी कंडीशंस में उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, कुछ पीरियड के लिए उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो उनको साइन करना पड़ता है, तो इसको बीड सिक्योरिंग डिक्लेरेशन कहा जाता है। तो ये सब करेक्ट है, एनी ऑफ द अबव कंडीशन। कोई वाइवा और इंटरव्यू में आप जाओगे आपको पूछ सकते हैं जे कब उनको सस्पेंड किया जाएगा। ओके, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट्स कब बिडर्स को सस्पेंड कर देते हैं कुछ पीरियड के लिए, राइट, कुछ कंडीशन में उनको सस्पेंड किया जाता है। ओके, ऑन व्हाट बेसिस एक्चुअली द बिडर्स एंड सप्लायर्स दे आर सस्पेंडेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री। ओके, एनी ऑफ द अबव कंडीशन, आंसर इज BT। चलो, बीड सिक्योरिटी ऑफ सक्सेसफुल बिडर शुड बी रिटर्न डैश ऑन अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑन रिसिप्ट ऑफ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, ऑन सबमिशन ऑफ फाइनल बिल, नॉन ऑफ द अबव। जो सक्सेसफुल बिडर है, जिसको फाइनली चूज किया गया, वो गुड्स को सप्लाई करेगा, जिसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, उसका बीड सिक्योरिटी को कब रिटर्न किया जाएगा, जब उससे परफॉर्मेंस सिक्योरिटी एक्सेप्ट किया जाएगा। जब वो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी दे देगा तब उसका बीड सिक्योरिटी को उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो आंसर इज बिट बी, बीड सिक्योरिटी ऑफ सक्सेसफुल बिडर शुड बी रिटर्न ऑन रिसिप्ट ऑफ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, आंसर इज बिट बी। चलो, क्वेश्चन नंबर 48, द अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी शुड ऑर्डिनरीली रेंज बिटवीन। जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी होता है, जो पर्टिकुलरली जो बिडर और सप्लायर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, तो वो एक परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देता है। क्यों परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देता है, उसका परफॉर्मेंस को असेस किया जाता है कि वो ठीक टाइम में प्रोडक्ट को डिलीवरी कर रहा है कि नहीं, कि जो बिडिंग डॉक्यूमेंट में था और वो कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया है कि इस तरीके का क्वालिटी गुड को वो सप्लाई करेगा, कि जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन था वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इस तरीके का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन गुड में सप्लाई करूँगा, ठीक है। और ये सब चीज़ में उसको एक परफॉर्मेंस, और जो वारंटी गारंटी पीरियड है वो सर्विस प्रोवाइड करेगा, फ्री सर्विस प्रोवाइड करेगा, ये सब के लिए वो एक परफॉर्मेंस सिक्योरिटी उसको देना पड़ता है। वो जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसमें फेल होता है तो उसका परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को उसको रिटर्न नहीं किया जाएगा और उसका जो बीड कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसलिए उसको जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी कितना देना पड़ता है ना, ये नॉर्मली 5 to 10% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो जितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जितना जो फाइनलाइज किया गया है कि इतना वर्थ ऑफ गुड्स आपसे रिसीव किया जाएगा, जो पर्टिकुलरली प्रोक्योरिंग एंटिटी वो फाइनलाइज किया है कि इतना वर्थ ऑफ गुड्स को वो रिसीव करेगा दो कंसर्न बिडर और कंसर्न सप्लायर से, तो उसका 5 to 10% उसको परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देना पड़ता है। आंसर इज बिट बी। ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन में दे दिया। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जो है रूल 147 में क्या बताया, GFR जनरल फाइनेंशियल रूल 170 जो है वो बीड सिक्योरिटी के ऊपर है, और मैं डिटेल्स वहाँ पर बताया बीड सिक्योरिटी के ऊपर, देखिए आप MCQ में। और जो GFR 171 है वो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के ऊपर है। टू एंश्योर ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी इज टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सक्सेसफुल बिडर अवॉर्डेड द कॉन्ट्रैक्ट। इसको डिस्कस किया क्यों परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देना पड़ता है। Unlike contract of works and plants, in case of contracts for goods, the need for the performance security depends on the market conditions and commercial practice for the particular kind of goods. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्क्स एंड प्लांट्स में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको छोड़ दो। इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर गुड्स, जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जो 5 to 10% है, कब 6 होगा, कब 7 होगा कि 8 होगा, ये जो डिसाइड होता है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है ना, मार्केट कंडीशंस, और एक है कमर्शियल प्रैक्टिस फॉर द पर्टिकुलर काइंड ऑफ गुड्स। तो पर्टिकुलर काइंड ऑफ गुड्स का कमर्शियल प्रैक्टिस को देखेंगे और मार्केट कंडीशंस को देख के जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है उसको फाइनलाइज किया जाएगा। और बेसिकली उसका जो नॉर्मल रेंज होता है 5 to 10% होता है, और एक पर्टिकुलर परसेंटेज को डिटेक्ट किया जाएगा।
तो उसको कैसे डिसाइड किया जाता है ना, मार्केट कंडीशंस एंड कमर्शियल प्रैक्टिस। और जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी कैसे देना पड़ता है भाई, वही जैसे बीड सिक्योरिटी देना पड़ता है, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट फ्रॉम ए कमर्शियल बैंक, बैंक गारंटी फ्रॉम ए कमर्शियल बैंक, और ऑनलाइन पेमेंट इन एन एक्सेप्टेबल फॉर्म, सेफगार्डिंग द परचेजेस इंटरेस्ट इन ऑल रिस्पेक्ट। ओके, इस तरीके से उनको परफॉर्मेंस सिक्योरिटी रिसीव किया जाता है। ओके, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी शुड रिमेन वैलिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी शुड रिमेन वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 60 days बियॉन्ड द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल ओब्लिगेशंस ऑफ द सप्लायर इंक्लूडिंग वारंटी ओब्लिगेशंस। जो भी ओब्लिगेशंस है, जो वारंटी गारंटी ओब्लिगेशंस होता है, वो जब कंप्लीट हो जाएगा उससे आप काउंट कर लो 60 days बियॉन्ड, इट इज 60 days बियॉन्ड द कंप्लीशन ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल ओब्लिगेशंस। ओके, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी वैलिड होता है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, बीड सिक्योरिटी शुड बी रिफंडेड टू द सक्सेसफुल बीडर ऑन रिसिप्ट ऑफ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। मैं बताया जो फाइनली जिस बीडर और सप्लायर को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उससे जब परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को एक्सेप्ट किया जाएगा तब उसका बीड सिक्योरिटी को उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी शुड रिमेन वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ डैश बियॉन्ड द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल ओब्लिगेशंस ऑफ द सप्लायर इंक्लूडिंग वारंटी ओब्लिगेशंस। ये आंसर बीट बी है, 60 days। अभी मैं एक्सप्लेन किया, तो जो भी वारंटी ओब्लिगेशंस होता है और जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल ओब्लिगेशंस होता है उसका खत्म होने के बाद आप काउंट कर लो 60 days, उसके जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी वैलिड होता है। ओके, फॉर ए पीरियड ऑफ 60 days बियॉन्ड द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल ओब्लिगेशंस ऑफ द सप्लायर इंक्लूडिंग वारंटी ओब्लिगेशंस। चलो क्वेश्चन नंबर 50 को चलेंगे। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी रिड्यूस्ड फ्रॉम 5 to 10% to dash of the value of the contract till date 31st December 2021 ड्यू टू पैंडेमिक सिचुएशन इन द कंट्री। अभी जो पैंडेमिक सिचुएशन है, अभी 31st December 2021 तक गवर्नमेंट डिक्लेयर किया है। जो नॉर्मली जो रेंज था परफॉर्मेंस सिक्योरिटी 5 to 10% था, उसको रिड्यूस कर दिया गया है 3%। ओके, आंसर इज बिट बी 3% कर दिया गया है, मगर ये जो वैलिड होगा अप टू 31st December 2021 होगा। उसके बाद एज यूजुअल मैनर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी रहेगा वही 5 to 10% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। आंसर इज बिट बी। चलो 51, यहाँ पर दिया है स्टेटमेंट्स दिया है, इन केस ऑफ लिमिटेड टेंडर और इन एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी लेट बिड्स शुड बी कंसिडर्ड आफ्टर अप्रोचिंग टू द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स। लेट बिड्स शुड नॉट बी कंसिडर्ड, लेट बिड्स कंसिडर्ड आफ्टर पेइंग पेनल्टी। तो तीन चीज़ दिया है। आप देखिए GFR 165 वो लेट बिड्स के ऊपर है। लेट बिड क्या है? एक बिड ओपनिंग डेट होता है और क्लोजिंग डेट होता है। तो जो बिड क्लोजिंग डेट होगा, तो क्लोजिंग डेट के बाद बिडिंग डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्लियरली मेंशन है जो लेट बिड केस में। तो इसमें जो है स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, लेट बिड्स शुड नॉट बी कंसिडर्ड। लेट बिड्स को कभी कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि बीड जो क्लोजिंग डेट होता है बीड सबमिशन का, उसके बाद ओके बिडिंग डॉक्यूमेंट को कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये जो है स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक्चुअली आंसर इज बिट डी, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट वन। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 52 को देखेंगे। डैश इज टू बी प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट बिफोर प्रोक्योरिंग द गुड्स फ्रॉम ए सिंगल सोर्स। कभी कभी क्या है, सिंगल सोर्स से गुड्स को प्रोक्योर किया जाता है, क्योंकि डिपार्टमेंट और कंसर्न मिनिस्ट्री के पास नॉलेज है कि पर्टिकुलर फार्म वो गुड्स को सप्लाई करता है, और वो जो गुड्स बेसिकली जो पार्ट्स होता है, जो मशीनरीज होता है, और वो कंपैटिबल होता है, जो कि पर्टिकुलर फार्म जो गुड्स जो मशीनरीज की जो टेक्निकल इक्विपमेंट सप्लाई करता है उसके साथ कंपैटिबल होता है। इसके लिए पर्टिकुलर फार्म से उसको इसको परचेज किया जाएगा, उसको प्रोक्योर किया जाएगा। तो ऐसे सिंगल सोर्स से जो दिया है कि प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट होता है, जो आंसर इज बीट ए, वो प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट एक्चुअली डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री प्रोवाइड करते हैं, और उसमें क्लियरली मेंशन होता है जब एक प्रोक्योरिंग एंटिटी जब एक पर्टिकुलर सोर्स से वो गुड्स को प्रोक्योर करेगा, जो सिंगल टेंडर इंक्वायरी होता है, पर्टिकुलर फार्म से वो उसको प्रोक्योर करेगा। जो सिंगल टेंडर इंक्वायरी आप देख लीजिए GFR 166 में मेंशन है, तो उसमें वो प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट मेंशन करेगा। क्यों एक पर्टिकुलर सिंगल टेंडर इंक्वायरी, बेसिकली एक सिंगल सोर्स से बेसिकली गुड्स को प्रोक्योर किया गया, उसमें रीजन देना पड़ेगा प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट में। तो बीट ए, आंसर इज बीट ए, प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। उसके ऊपर थोड़ा
हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये है सिंगल टेंडर इंक्वायरी 166, क्यों एक पर्टिकुलर फार्म से, क्यों एक पर्टिकुलर सप्लायर से गुड्स को प्रोक्योर किया जाता है, तो वो सिंगल टेंडर इंक्वायरी है जो GFR 166 में मेंशन है। इट इज इन द, तो देखिए स्टेटमेंट्स, इट इज इन द नॉलेज ऑफ द यूजर डिपार्टमेंट दैट ओनली ए पर्टिकुलर फार्म इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ द रिक्वायर्ड गुड्स। जो गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करता है एक पर्टिकुलर फार्म ही करता है, तो इसके लिए जो सिंगल टेंडर इंक्वायरी से उसको एक पर्टिकुलर फार्म से उसको प्रोक्योर किया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट, इन केस ऑफ इमरजेंसी, कभी इमरजेंसी टाइम में द रिक्वायर्ड गुड्स आर नेसेसरली टू बी परचेज फ्रॉम ए पर्टिकुलर सोर्स एंड द रीजन फॉर सच डिसीजन इज टू बी रिकॉर्डेड एंड अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑब्टेन्ड। इमरजेंसी टाइम में जो गुड्स को प्रोक्योर किया जाएगा एक पर्टिकुलर सोर्स से, ओके, उसको प्रोक्योर किया जाता है। थर्ड है फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मशीनरी और स्पेयर पार्ट्स टू बी कंपैटिबल टू द एग्जिस्टिंग सेट्स ऑफ इक्विपमेंट on the advice of a competent technical expert and approved by the competent authority, the required item is to be purchased only from a selected farm। क्योंकि हमको जो बेसिकली प्रोक्योरिंग एंटिटी के लिए जो भी जो टेक्निकल इक्विपमेंट्स चाहिए, जो मशीनरी चाहिए, वो पर्टिकुलर फार्म ही प्रोवाइड कर सकता है। तो ये तीनों चीज़ में एक्चुअली सिंगल टेंडर पर्टिकुलर फार्म से गुड्स को प्रोक्योर किया जाता है। और वो प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट मेंशन किया है, रीजन भी दिया जाएगा। तो वो प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट कौन प्रोवाइड करता है? जो कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है, और उसमें एक कलम है, क्लियरली मेंशन किया जाएगा इसी रीजन से इसको पर्टिकुलर फार्म से गुड्स को प्रोक्योर किया गया, राइट। नेक्स्ट वन, व्हेयर द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, क्वेश्चन नंबर 53, व्हेयर द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कंसिडर्स इट नेसेसरी टू सीक कॉम्पिटिटिव ऑफर्स फ्रॉम अब्रोड फॉर एनी गुड्स, इट में सेंड कॉपीज ऑफ द नोटिस इन्वाइटिंग टेंडर्स टू। जब मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ये कंसिडर करेगा कि थोड़ा कॉम्पिटिटिव ऑफर्स के लिए जो बिडिंग को इनवाइट किया जाएगा, अब्रोड से इनवाइट किया जाएगा, तब कॉपीज किसको सेंड किया जाएगा? इट में सेंड कॉपीज ऑफ द नोटिस इनवाइटिंग टेंडर टू डैश द इंडियन एम्बासीज अब्रोड, द फॉरेन एम्बासीज इन इंडिया, बिड सी बोथ ए एंड बी, और बिड डी नॉन ऑफ द अबव। आंसर है बोथ ए एंड बी। तो द इंडियन एम्बासीज अब्रोड और द फॉरेन एम्बासीज इन इंडिया, दोनों को। सपोज हम चाहते हैं कि हम USA से बिडिंग इनवाइट करेंगे, तो जो हमारा इंडियन एम्बासडर है USA में, उसको वो डॉक्यूमेंट्स दिया जाएगा, और जो USA का जो एम्बासडर है इंडिया में, उसको वो डॉक्यूमेंट्स दिया जाएगा, ओके। तब वो दोनों डिसाइड करेंगे, ओके, इतना क्वांटिटी का गुड एडिक्वेट क्वांटिटी अवेलेबल है कि नहीं, वो डिसाइड करेंगे दोनों एम्बासडर्स। तो बोथ ए एंड बी आंसर इज बिड सी। चलो क्वेश्चन नंबर 54 को चलेंगे। इन टू बीड सिस्टम, जो टू बीड सिस्टम है आप देख लीजिए GFR 163, ओके, जो बीड्स को इनवाइट किया जाता है, मैं थोड़ा बता देता हूँ। GFR 161 एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी, GFR 162 लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी, GFR 163 टू बीड सिस्टम, GFR 164 टू स्टेज बीडिंग सिस्टम, ओके। GFR 165 जो है लेट बीड को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जो GFR 166 है वो सिंगल टेंडर इंक्वायरी है, GFR 166 सिंगल टेंडर इंक्वायरी है। GFR 167 वो रिवर्स ऑक्शन टूल है, जो ऑनलाइन बोली से जो बेसिकली पर्टिकुलर बीडर को चूज किया जाता है। तो ये जो टू बीड सिस्टम है, साइमल्टेनियस रिसिप्ट ऑफ सेपरेट टेक्निकल एंड फाइनेंशियल बीड्स, हम जानते हैं कि टू बीड सिस्टम में जब कोई कॉम्प्लिकेटेड मशीन टूल्स इक्विपमेंट्स को प्रोक्योर किया जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड मशीन टूल्स इक्विपमेंट्स को प्रोक्योर किया जाएगा, तब हम टू बीड सिस्टम को जाएंगे। वहाँ पर दो बीड होता है, वो टेक्निकल बीड एंड फाइनेंशियल बीड। फर्स्ट टेक्निकल बीड को एवेलुएट किया जाएगा, और जिसका परफेक्ट होगा उसका फाइनेंशियल बीड को इन्वाइट किया जाएगा। मगर वो एक्चुअली टू बीड सिस्टम में साइमल्टेनियसली टेक्निकल बीड और फाइनेंशियल बीड को सबमिट किया जाता है, और फर्स्ट जो ओपन होगा टेक्निकल बीड्स को ओपन किया जाएगा, ओके। जो भी बीडर्स वो साइमल्टेनियसली दोनों फाइनेंशियल बीड्स टेक्निकल बीड्स को सबमिट करेंगे, मगर उनका टेक्निकल बीड्स को फर्स्ट ओपन किया जाएगा, और जिनका टेक्निकल बीड्स परफेक्ट होगा उनका ही फाइनेंशियल बीड्स को ओपन किया जाएगा और एनालाइज किया जाएगा, उनका प्राइस शेड्यूल को चेक करके फाइनलाइज किया जाएगा किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है स्टेटमेंट दिया है, बोथ टेक्निकल एंड फाइनेंशियल बीड्स ओपन साइमल्टेनियसली, द टेक्निकल बीड्स आर टू बी ओपन एट द फर्स्ट इंस्टेंस। ये करेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट टेक्निकल बीड्स को ओपन किया जाएगा। एट द सेकेंड स्टेज फाइनेंशियल बीड्स ऑफ ओनली दीज टेक्निकली एक्सेप्टेबल ऑफर शुड बी ओपन। जो स्टेटमेंट 4 है, फाइनेंशियल बीड्स ऑफ ऑल बीडर्स शुड बी ओपन। तो यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर दिया है स्टेटमेंट, देखिए मेरे हिसाब से जो स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3,
साइमल्टेनियसली दोनों बिड्स को सबमिट किया जाएगा, मगर फास्ट टेक्निकल बिड्स ओपन होगा सबका, फाइनेंशियल बिड्स ओपन नहीं होगा, टेक्निकल बिड्स ओपन होगा। और जिनका टेक्निकल बिड्स परफेक्ट होगा तो उनका ही फाइनेंशियल बिड्स को नेक्स्ट सेकेंड स्टेज में ओपन किया जाएगा। तो बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 करेक्ट वन। तो आंसर इज बिट सी। ये GFR 163 में क्लियरली मेंशन है। चलो, इन 2 स्टेज बिडिंग ऑब्टेन बिड इन 2 स्टेजेस, जो एक 2 स्टेज बिडिंग होता है ये GFR 164 में है। तो 2 स्टेज बिडिंग में फास्ट ओनली टेक्निकल बिड्स को सबमिट किया जाएगा। जैसे 2 बिड सिस्टम में दोनों बिड्स टेक्निकल एंड फाइनेंशियल बिड्स को सबमिट किया जाता है, मगर फास्ट टेक्निकल बिड्स को ओपन किया जाएगा। जिनका टेक्निकल बिड्स परफेक्ट होगा उनका ही फाइनेंशियल बिड्स को एवेल्यूएट किया जाएगा और फाइनली कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। मगर 2 स्टेज बिडिंग में, जो 2 स्टेज बिडिंग होता है, फास्ट टेक्निकल बिड्स को इन्वाइट किया जाएगा, टेक्निकल बिड्स को इन्वाइट किया जाएगा और उसको एवेल्यूएट किया जाएगा और प्री बिड कॉन्फ्रेंस भी होगा। और जो प्रिंसिपल्स है उसमें चेंज नहीं आएगा, मगर कुछ मॉडिफिकेशंस उसमें आता है तो बिडर्स को इनवाइट किया जाएगा, मगर जो जनरल प्रिंसिपल है उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। तब जिनका टेक्निकल बिड्स ओपन होने के बाद जिनको मिनिमम टेक्निकल स्कोर मिलेगा उनका ही फाइनेंशियल बिड्स को ओपन किया जाएगा, उनको फाइनेंशियल बिड्स को इन्वाइट किया जाएगा 2 स्टेज बिडिंग में। 2 स्टेज बिडिंग में दोनों बिड्स को साइमल्टेनियसली सबमिट नहीं किया जाएगा, फर्स्ट स्टेज में टेक्निकल बिड्स को इन्वाइट किया जाएगा और उसको एवेल्यूएट किया जाएगा। जिनको मिनिमम टेक्निकल स्कोर मिलेगा फिर उनको फाइनेंशियल बिड को इनवाइट किया जाएगा, तो वो उनका प्राइस डिटेल्स देंगे, फिर एनालाइज किया जाएगा। तो इन 2 स्टेज बिडिंग ऑब्टेन बिड इन 2 स्टेजेस विथ रिसिप्ट ऑफ फाइनेंशियल बिड्स आफ्टर रिसिप्ट एंड एवेल्युएशन ऑफ टेक्निकल बिड्स, ये करेक्ट है। तो फर्स्ट टेक्निकल बिड्स को रिसीव किया जाएगा, उसको एवेल्युएट किया जाएगा। जिन बिडर्स को मिनिमम टेक्निकल स्कोर मिला उनसे ही फाइनेंशियल बिड को इन्वाइट किया जाएगा सेकेंड स्टेज में। तो ये जो स्टेटमेंट है करेक्ट है, ट्रू वन। आंसर इज बिट ए, GFR 164 में है। चलो, तो एडवर्टाइजमेंट फॉर इन्वाइटेशन ऑफ टेंडर शुड बी गिवन इन, कहाँ पर एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है? सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, वेबसाइट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ऑफ द अबव। जो सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा। सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, एक ऑनलाइन पोर्टल है, तो वहाँ पर एडवर्टाइज किया जाएगा। और जो कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन टेंडर को इनवाइट करता है उसका वेबसाइट में उसको एडवर्टाइजमेंट दिया जाएगा। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। CPPP का जो वेबसाइट है eprocure.gov.in, जो CPPP सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल का जो वेबसाइट है वो eprocure.gov.in। ओके, तो ये ऑल ऑफ द अबव में जो एडवर्टाइजमेंट दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 57, ड्यू टू कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस ए बिडर और एनी ऑफ इट इज सक्सेसर शैल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन ए प्रोक्योरमेंट प्रोसेस ऑफ एनी प्रोक्योरिंग एंटिटी फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग डैश ईयर्स कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑफ डिबारमेंट। जो डिबारमेंट ऑफ बिडर्स है आप देख लीजिए GFR 151, जनरल फाइनेंशियल रूल 151 में क्लियरली मेंशन है, ड्यू टू कन्विक्टेड एन ऑफेंस ए बिडर और एनी ऑफ इट सक्सेसर शैल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन ए प्रोक्योरमेंट प्रोसेस ऑफ एनी प्रोक्योरिंग एंटिटी फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years commencing from the date of debarment. Answer is bit C. Clear? Next one, a bidder shall be debarred. अच्छा, bidders को कब debar किया जाएगा यहाँ पर दिया है। A bidder shall be debarred if he has been convicted of an offence under the Prevention of Corruption Act 1988. ये कभी आप इंटरव्यू फेस करोगे, कभी वाइवा है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कब बिडर को डेबर किया जाएगा, डेवरमेंट ऑफ बिडर्स। क्या क्या कंडीशन में, जो हम डिस्कस किया 3 years के लिए बिडर्स को डेबर किया जाता है। अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 एक है, ये करेक्ट है। सेकेंड वन, द इंडियन पेनल कोड IPC और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स फॉर कॉजिंग एनी लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी और कॉजिंग ए थ्रेट टू पब्लिक हेल्थ, ये भी करेक्ट है। ये दोनों कंडीशन में बिडर्स को डेबर किया जाता है। 3 years के लिए उनको डेबर कर दिया जाता है। वो सप्लाई नहीं कर सकते, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते कोई भी बिडिंग में, ठीक है। ए बिडर शैल बी डेबर्ड, ये दोनों कंडीशन को आपको याद रखना है। एक है कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, द इंडियन पेनल कोड IPC और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स फॉर कॉजिंग एनी लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी
और कजिंग ए थ्रेट टू पब्लिक हेल्थ, ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। आंसर इज ट्रिपल आई, बोथ द स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर करेक्ट वन। इस दोनों को रिमेंबर कीजिए। जो डिपार्टमेंट बिडर्स है आप देख लीजिए, जनरल फाइनेंशियल रूल 151 में है। क्वेश्चन नंबर 59, ए प्रोक्योरिंग एंटिटी में डिवेर ए बिडर और एनी ऑफ ये प्रोक्योरिंग एंटिटी, ए पर्टिकुलर प्रोक्योरिंग एंटिटी है, जैसे कोई सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स ऑफ द डिपार्टमेंट, वो इट मीन्स बिडिंग इन्वाइट करके गुड्स को प्रोक्योर करता है, तब उसका कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होता है। जब कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच किया जाएगा तब वो जो भी बिडर वो कोड ऑफ कंडक्ट को कंट्रावेन करता है और उसको डेविएट करके जो कोड ऑफ इंटीग्रिटी है उसको वो डेविएट करता है और कंट्रावेन करता है, तो उस केस में उसको डिवेर किया जाएगा 2 ईयर्स के लिए। ये प्रोक्योरिंग एंटिटी के लिए है। ये प्रोक्योरिंग एंटिटी में डिवेर ए बिडर or any of its successors from participating in any procurement process undertaken by it for a period not exceeding 2 years. Answer is bit B, if it determines that the bidder has breached the code of integrity. तो कोड ऑफ इंटीग्रिटी आप देख लीजिए, जनरल फाइनेंशियल रूल 175 में है, कोड ऑफ इंटीग्रिटी है, तो उसमें कुछ कंडीशंस है, टर्म्स एंड कंडीशंस है, और द बिडर्स एंड सप्लायर्स शुड फॉलो द कोड ऑफ इंटीग्रिटी। यदि वो उसको कंट्रावेन करते हैं और उसको ब्रीच करते हैं, उनको 2 ईयर्स के लिए डिवेर किया जाएगा पर्टिकुलर प्रोक्योरिंग एंटिटी से, राइट। तो यहाँ पर कन्विक्टेड केस में 3 ईयर्स, और यदि कोड ऑफ इंटीग्रिटी को ब्रीचिंग किया जाता है तब 2 ईयर्स। चलो क्वेश्चन नंबर 60, ए बिडर शैल नॉट बी डिवेयर्ड अनलेस सच बिडर हैज बीन गिवन ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट अगेंस्ट सच डिपार्टमेंट। तो यदि कोई बिडर ऐसा कुछ ऑफेंस किया है, उसको डिटेक्ट किया गया, तो उसको टाइम दिया जाएगा कि वो रिप्रेजेंटेशन दे कि क्यों उसको डिवेयर नहीं किया जाएगा। तो उसका रिप्रेजेंटेशन को एनालाइज किया जाएगा, एक्सेप्ट करने के बाद उसका रिप्रेजेंटेशन को एनालाइज किया जाएगा, तब उसको डिवेयर किया जाएगा। तो इमीडिएटली उसको डिवेयर नहीं किया जाएगा, उसको भी चांस दिया जाएगा कि वो, उसको पूछा जाएगा कि क्यों आपको डिवेयर नहीं किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप जो ऑफेंस में जो कन्विक्ट हो उसी में आपको डिवेयर किया जाएगा, क्यों नहीं किया जाएगा। तो उसको वो भी रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। द बिडर शैल नॉट बी डिवेयर्ड अनलेस सच बिडर हैज बीन गिवन ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट अगेंस्ट सच डिपार्टमेंट। ये जो स्टेटमेंट है करेक्ट है, आंसर इज बीट ए, स्टेटमेंट इज करेक्ट वन। 61 question number, in GFR dash there is debarment of bidders from bidding if he has been convicted of an offence। मैं अभी बताया convicted of an offence में बिडर्स को डिवेयर किया जाता है 3 ईयर्स के लिए, तो वो जनरल फाइनेंशियल रूल 151 में है। आंसर इज बिट बी, 151 डिवेयरमेंट फ्रॉम बिडिंग। आप देख लीजिए जनरल फाइनेंशियल रूल 151। देन एडवांस पेमेंट टू ए सप्लायर शुड नॉट बी मेड इन केस ऑफ। तो किन किन सप्लायर्स को एडवांस दिया जाएगा, एडवांस पेमेंट किया जाएगा। तो एडवांस पेमेंट टू सप्लायर शुड नॉट बी मेड इन केस ऑफ, कौन सा केस में एडवांस नहीं दिया जाएगा? मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, फैब्रिकेशन कॉन्ट्रैक्ट्स, टर्न की कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर सप्लाई ऑफ एनी ऑर्डिनरी गुड्स। आंसर इज बिट डी, जो कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर सप्लाई ऑफ एनी ऑर्डिनरी गुड्स के लिए एडवांस नहीं दिया जाएगा। ओके, और सब टर्न की कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है? जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, कोई कॉम्प्लिकेटेड मशीन टूल्स इक्विपमेंट्स को प्रोक्योर किया जाएगा, तो इस केस में वो जो टर्न की कॉन्ट्रैक्ट होता है। फैब्रिकेशन कॉन्ट्रैक्ट्स जो ग्रिल फिल जो काम होता है, और मेंटेनेंस जैसे आपका एयर कंडीशनर है कि आपका कंप्यूटर्स है, आप इसको मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, तो ये सब में एडवांस मिलेगा, मगर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर सप्लाई ऑफ इन ऑर्डिनरी गुड्स के लिए एडवांस नहीं मिलेगा। आंसर इज बिट डी। चलो 63 में ये अभी आगे एडवांस पेमेंट कितना दिया जाएगा प्राइवेट को और पब्लिक को। एडवांस पेमेंट टू ए प्राइवेट फार्म, यदि प्राइवेट फार्म सप्लाई करता है तो उसको कितना एडवांस दिया जाएगा, जैसे मेंटेनेंस के लिए कि फैब्रिकेशन के लिए कि टर्न की एग्रीमेंट, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, कोई कॉम्प्लीमेंटेड जो वेरी कॉम्प्लिकेटेड मशीन को उसे प्रोक्योर किया जाएगा, तो उस केस में जो टर्न की एग्रीमेंट होता है। तो प्राइवेट फार्म्स को जो एडवांस दिया जाएगा वो 30% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, जितना कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होगा उसका 30% उसको एडवांस मिलेगा। तो आंसर इज बिट सी। नेक्स्ट है जो एडवांस पेमेंट टू गवर्नमेंट एजेंसी, यदि गवर्नमेंट एजेंसी सप्लाई करता है, जैसे वो इन्वॉल्व है जैसे मेंटेनेंस में कि फैब्रिकेशन में कि टर्न की कॉन्ट्रैक्ट में, तो उस केस में उसको एडवांस कितना मिलेगा ना, 40% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, ठीक है। आंसर इज बिट डी,
तो प्राइवेट फर्म को 30% एडवांस, जो 30% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एडवांस दिया जाएगा, और जो गवर्नमेंट एजेंसी है उसको 40% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एडवांस दिया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, इन केस ऑफ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये पर्टिकुलरली मेंटेनेंस के लिए है। मेंटेनेंस आप जानते हो, सपोज ऑफिस में सपोज एयर कंडीशनर्स है कि सपोज डेस्कटॉप है, ये सब मेंटेनेंस में आ जाता है। तो इन केस ऑफ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट द अमाउंट शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट पेबल फॉर डैश, ये 6 months अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। आंसर इज बिट डी। जो अमाउंट शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट पेबल, जो 6 months के लिए जो अमाउंट नॉर्मली पे किया जाता है उतना ही उसको एडवांस दिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो द अमाउंट शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट पेबल फॉर 6 months अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। आंसर इज बिट डी। और ये पर्टिकुलरली मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ये फैब्रिकेशन और टर्न की कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। और टर्न की कॉन्ट्रैक्ट आपको मैं बोला अभी, कभी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स को प्रोक्योर किया जाएगा, उस केस में टर्न की कॉन्ट्रैक्ट होता है। चलो पार्ट पेमेंट के ऊपर है। पार्ट पेमेंट टू ए सप्लायर में बी रिलीज्ड डैश। ओके, जो पार्ट पेमेंट है टू ए सप्लायर में बी रिलीज्ड डैश डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स ऑफ डिलीवरी इनकॉर्पोरेटेड इन ए कॉन्ट्रैक्ट। Part payment to the supplier may be released after it dispatches the goods from its premises in terms of the contract. Bid C both A and B, bid D none of the above. Answer is bid C both A and B. So part payment होता है supplier को depending on the terms of delivery incorporated in a contract, ये correct है। और जो part payment है to the supplier may be released, कब release किया जाएगा ना, after it dispatches the goods from its premises in terms of the contract। दोनों statement correct है, both A and B, right? क्वेश्चन नंबर 67 जो है, व्हेन इट इज डिसाइडेड विद द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग ओल्ड आइटम्स विद ए न्यू एंड बेटर वर्सन आइटम्स कॉल्ड डैश। ये बाय बैक ऑफर, जैसे जो ओल्ड आइटम्स है उसको हम दे देते हैं और न्यू आइटम्स रिसीव करते हैं। व्हेन इट इज डिसाइडेड विद द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग ओल्ड आइटम्स विद ए न्यू एंड बेटर वर्सन आइटम्स, ये बाय बैक ऑफर। आप GFR 176 देखिए, जनरल फाइनेंशियल रूल 176 है बाय बैक ऑफर। जो हमारा ओल्ड आइटम्स है, जो ऑब्सोलेट आइटम्स है, जो गवर्नमेंट एंटिटी का, वो दे देता है और उसको रिप्लेस करता है न्यू आइटम्स में, राइट, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का परमिशन के बाद। तो आंसर इज बिट ए, बाय बैक ऑफर्स GFR 176। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, इन डैश ऑल गवर्नमेंट परचेजेस शुड बी मेड इन ए ट्रांसपेरेंट, कॉम्पिटेटिव एंड फेयर मैनर टू सिक्योर बेस्ट वैल्यू फॉर मनी। तो जो गवर्नमेंट एंटिटीज़ है, जो गुड्स वो प्रोक्योर करता है, परचेज करता है, तो वो बहुत ट्रांसपेरेंटली और इट मीन्स वो जो बिडिंग होगा वो कॉम्पिटिटिव होना चाहिए और फेयर मैनर होगा, वो GFR 173 में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपेरेंट, कॉम्पिटिटिव एंड फेयर मैनर गुड्स को परचेज किया जाएगा व प्रोक्योर किया जाएगा टू सिक्योर बेस्ट वैल्यू फॉर मनी। ये GFR 173 बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जनरल फाइनेंशियल रूल 173 में। आंसर इज बिट डी। चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 69, क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग रिस्पॉन्सिवनेस आर टू बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर एवेल्युएटिंग द बिड्स। जो बिड्स को एवेल्युएट किया जाएगा तो उसको कैसे एवेल्युएट किया जाएगा? टाइम ऑफ डिलीवरी, परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी और एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, द टर्म्स ऑफ पेमेंट एंड ऑफ गारंटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर प्रोक्योरमेंट, प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग, मेंटेनिंग एंड रिपेयरिंग एटसेट्रा, ऑल द अबव आंसर है। क्योंकि टाइम ऑफ डिलीवरी को देखा जाएगा, उनका परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी और एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा जाएगा, टर्म्स ऑफ पेमेंट एंड गारंटीज़ को देखा जाएगा, और उनका प्राइस और जो कॉस्ट होता है ऑपरेटिंग की, मेंटेनिंग एंड रिपेयरिंग, ये सब चीज़ को देखा जाएगा जब बीड को एवेल्युएट किया जाएगा। बीड वैलिडिटी पीरियड में जब जो बीडर्स का बीड को एवेल्युएट किया जाएगा तब ये सब चीज़ को देखा जाएगा। आंसर इज बीट ई, ऑल ऑफ द अबव, राइट। 70, क्वेश्चन नंबर 70 को चलेंगे। रिजेक्शन ऑफ ऑल बिड्स इज जस्टिफाइड व्हेन। कब बिड्स को रिजेक्ट कर दिया जाएगा? रिजेक्शन ऑफ ऑल बिड्स इज जस्टिफाइड व्हेन इफेक्टिव कंपटीशन इज लैकिंग, all bids and proposals are not substantially responsive to the requirements of the procurement documents, the bids or proposals prices are substantially higher than the updated cost estimate or available budget, none of the technical proposals meets the minimum technical qualifying score, all of the above. Answer is bit E, all of the above. क्योंकि जब इफेक्टिव कंपटीशन लैक होगा और जो बिड्स, जो प्रपोजल्स जो सबमिट किया गया है वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट नहीं है, और जो बीड्स और प्रपोजल्स प्राइस है तो वो बियॉन्ड ऑफ द बजट है, तो थोड़ा ज़्यादा है,
और जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है वो मिनिमम टेक्निकल स्कोर को अचीव नहीं कर रहा है, तो इस केस में बिड्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है। आंसर इज बिट ई, ऑल ऑफ द अबव। कभी भाईबा और इंटरव्यू में पूछा जा सकता है आपको कब बिड्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है। ओके, आंसर इज बिट ई, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 71, लैक ऑफ कंपटीशन इन GFR 173 shall not be determined solely on the basis of the number of bidders। तो ओनली नंबर ऑफ बिडर्स को देख के एक्चुअली हम ये नहीं बोलेंगे कि लैक ऑफ कंपटीशन है। तो लैक ऑफ कंपटीशन इन GFR जो जनरल फाइनेंशियल रूल 173 है, shall not be determined solely on the basis of the number of bidders। ये तो स्टेटमेंट है ट्रू है, ट्रू वन। ओनली नंबर ऑफ बिडर्स को देख के हम ये नहीं बोलेंगे कि लैक ऑफ कंपटीशन है। तो आंसर इज बीट ए, ट्रू वन। यहाँ पर दिया है, देखिए, इवन व्हेन ओनली वन बीड इज सबमिटेड, ओनली एक बीड ही सबमिट किया गया है, द प्रोसेस में बी कंसिडर्ड वैलिड प्रोवाइडेड फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। एक बीड को सबमिट किया गया है उसको भी एक्सेप्ट किया जाएगा जब उसका प्रोसेस ठीक होगा। कैसे? द प्रोक्योरमेंट वाज सैटिस्फैक्टरली एडवर्टाइज्ड एंड सफिशिएंट टाइम वाज गिवन फॉर सबमिशन ऑफ बिड्स। सफिशिएंटली उसको एडवर्टाइज किया गया है और सफिशिएंट टाइम दिया गया है बीड को सबमिशन करने के लिए। जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है उसमें इतना रेस्ट्रिक्टिव क्राइटेरिया नहीं है, और जो प्राइसेस है वो रीजनेबल है इन कंपैरिजन टू द मार्केट वैल्यू। ऑल ऑफ द अबव, ये आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इवन सिंगल बीड होगा पर ये सब प्रोसीजर है वो सही रहेगा। सफिशिएंट एडवर्टाइजमेंट किया गया है और बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के लिए सफिशिएंट टाइम दिया गया है, और जो भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है उसमें भी ज़्यादातर इतना रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, और जो प्राइसेस है वो रीजनेबल प्राइसेस है इन कंपेयर टू द मार्केट वैल्यूज। मगर एक बीड आया है तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। ओके, ये सब होने के बाद ही एक बीड एक्सेप्ट हुआ है तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो आंसर इज बीट डी, ऑल ऑफ द अबव। इन केस ए परचेज कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड टू परचेज और रिकमेंड द प्रोक्योरमेंट, नो मेंबर ऑफ द परचेज कमिटी शुड बी रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू एनी अदर मेंबर ऑफ सच कमिटी इन केस एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ प्रोक्योरमेंट एक्सीड्स डैश। यदि कोई परचेज कमिटी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है कोई गुड्स को परचेज करने के लिए, वहाँ पर डायरेक्टली जो कमिटी मेंबर है वो डायरेक्टली अदर मेंबर को मीट नहीं कर सकता। तो इस केस में एक्चुअली जो वैल्यू ऑफ प्रोक्योरमेंट एक्सीड्स डैश, वैल्यू ऑफ प्रोक्योरमेंट जब एक्सीड्स ₹25 लाख, जब वैल्यू ऑफ प्रोक्योरमेंट 25 लाख को क्रॉस करेगा तब उस केस में जो लोग परचेजिंग कमिटी होगा उसका मेंबर वो डायरेक्टली मीट नहीं कर सकते। राइट, आंसर इज बिट सी। चलो 74, कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। बिडर शुड नॉट बी परमिटेड टू अल्टर और मॉडिफाई देयर बिड्स आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द डेडलाइन फॉर रिसिप्ट ऑफ बिड्स। यस, क्योंकि जो बिडिंग सबमिशन डेट क्लोजिंग हो गया उसके बाद बिड वैलिडिटी पीरियड स्टार्ट हो गया, उसमें बिडर्स कोई बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में कोई चेंज नहीं कर सकता। नेगोशिएशन विथ बिडर्स आफ्टर बिड ओपनिंग मस्ट बी सीवियरली डिस्करेज्ड, कोई नेगोशिएशन नहीं होगा बिकॉज जो जब बीड ओपन हो गया तब कोई बिडर के साथ नेगोशिएशन नहीं होगा। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस वेयर प्राइस नेगोशिएशन अगेंस्ट एन एड हॉक प्रोक्योरमेंट इज नेसेसरी ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस द सेम मे बी रिजोर्टेड टू ओनली विद द लोएस्ट एवेल्युएटेड रेस्पॉन्सिव बिडर। हाँ, कभी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में यदि कोई एड हॉक प्रोक्योरमेंट है, एड हॉक मीन्स कोई एक्स्ट्रा प्रोक्योरमेंट हम करना चाहते हैं, तब इस केस में एक्चुअली नेगोशिएशन हो सकता है और जो लोएस्ट एवेल्युएटेड बिडर है उससे जो एक्स्ट्रा प्रोक्योरमेंट है उससे किया जा सकता है। तो ये जो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट, तो यहाँ पर देखेंगे। सो मेरे हिसाब से आंसर इज बीट डी, ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन। आंसर इज बीट डी। क्वेश्चन नंबर 75, द क्राइटेरिया फॉर एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशंस टू बी मेट बाय द बिडर्स। क्या क्राइटेरिया क्या है फॉर एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशंस? मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपीरियंस एंड पास्ट परफॉर्मेंस, ये राइट है। टेक्निकल कैपेबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एंड फाइनेंशियल पोजीशन, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी है। तो उनका मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी को देखा जाता है, उनका फाइनेंशियल कंडीशन को देखा जाता है, उनका टेक्निकल कैपेबिलिटी को देखा जाता है, उनका मिनिमम एक्सपीरियंस को देखा जाता है, उनका पास्ट परफॉर्मेंस को देखा जाता है। ये सब है जो क्राइटेरिया फॉर एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशंस। ओके, ये ऑल ऑफ द अबव, आंसर इज बिट डी। चलो क्वेश्चन नंबर 76, बिडिंग डॉक्यूमेंट्स शुड इंक्लूड ए क्लॉज। बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में एक क्लॉज होता है दैट इफ ए फार्म कोट्स डैश द बिड शैल बी ट्रीटेड एज अनरेस्पॉन्सिव एंड विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो एक क्लॉज होता है बिडिंग डॉक्यूमेंट जब सबमिट होता है तब वहाँ पर एक क्लॉज होता है, इफ ए फार्म कोट्स नील चार्जेस, आंसर इज बिट ए। कभी कभी क्या है
कुछ बिडर्स क्या करते हैं, वो कुछ सर्विस प्रोवाइड करेंगे और वो बिडिंग डॉक्यूमेंट में वो क्लियरली मेंशन करते हैं कि हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे मगर हम कुछ चार्ज नहीं लेंगे, हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे मगर चार्ज हम नहीं लेंगे, वो बिडिंग डॉक्यूमेंट में सबमिट करते हैं। तो उस तरीके का जो बिडिंग डॉक्यूमेंट को कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे और चार्ज नहीं लेंगे, तो उनको तो मिनिमम चार्ज लेना है, मगर वो बिडिंग डॉक्यूमेंट में मेंशन किया है कि हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे मगर हम कोई चार्ज नहीं लेंगे, तो उस केस में उनका जो बिडिंग डॉक्यूमेंट को कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक क्लॉज है, इफ ए फर्म कोड्स नील चार्जेस द बिड शैल बी ट्रीटेड एज अनरेस्पॉन्सिव एंड विल नॉट बी कंसिडर्ड। आंसर इज बिट ए। चलो 77 क्वेश्चन कुछ स्टेटमेंट्स दिया गया है। सुइटेबल प्रोविजन शुड बी केप्ट इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट टू एनेबल ए बिडर टू क्वेश्चन द बिडिंग कंडीशंस, बिडिंग प्रोसेस एंड ऑफ रिजेक्शन ऑफ इट्स बिड। ये राइट है कि यदि कोई बिडर को एक्चुअली दिया गया है, क्या है, उसका बिड को रिजेक्शन कर दिया गया, तो वो पूछ सकता है कि कौन सा रीजन से मेरा बिडिंग डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट किया गया, तो वो पूछ सकता है और वो प्रोक्योरिंग कंसर्न प्रोक्योरिंग एंटिटी उसको जवाब देगा। ये करेक्ट है। द रीजन्स फॉर रिजेक्टिंग ए टेंडर और नॉन इशूइंग ए टेंडर डॉक्यूमेंट टू ए प्रोस्पेक्टिव बिडर मस्ट बी डिस्क्लोज्ड व्हेयर इंक्वायरीज आर मेड बाय द बिडर। हाँ, क्यों टेंडर को रिजेक्ट कर दिया गया, क्यों प्रोस्पेक्टिव बिडर को टेंडर डॉक्यूमेंट्स इशू नहीं किया गया, तो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, जो कंसर्न प्रोक्योरिंग एंटिटी है, वो मेंशन करेगा कि इसी रीजन से टेंडर को रिजेक्ट कर दिया गया और इसी रीजन से एक्चुअली एक प्रोस्पेक्टिव बिडर को टेंडर डॉक्यूमेंट इशू नहीं किया गया, वो रीजन देगा। ये मस्ट है, रीजन देना पड़ेगा, ये भी ट्रू है। सुइटेबल प्रोविजन फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स इफ एनी एमानेटिंग फ्रॉम द, एमानेटिंग मीन्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द रिजल्टेंट कॉन्ट्रैक्ट शुड बी केप्ट इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट। तो बिडिंग डॉक्यूमेंट में मेंशन है यदि कोई ऐसा कुछ डिस्प्यूट्स आता है कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, कैसे उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा, तो वो भी मेंशन है बिडिंग डॉक्यूमेंट में। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, जो तीनों स्टेटमेंट है करेक्ट है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि कोई टेंडर को रिजेक्ट कर दिया जाता है और कोई प्रोस्पेक्टिव बिडर है उसको बिडिंग डॉक्यूमेंट इशू नहीं होता है, तो उस केस में जो कंसर्न प्रोक्योरिंग एंटिटी है, जो कंसर्न गवर्नमेंट प्रोक्योरिंग एंटिटी है, वो जवाब देगा। ओके, क्यों टेंडर को रिजेक्ट कर दिया गया, क्यों प्रोस्पेक्टिव बिडर को टेंडर डॉक्यूमेंट इशू नहीं किया गया। और ये भी बिडिंग डॉक्यूमेंट में मेंशन है, यदि कॉन्ट्रैक्ट में कोई डिस्प्यूट आ जाता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा और कैसे उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा, वो भी बिडिंग डॉक्यूमेंट में मेंशन होना चाहिए। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है मेरे हिसाब से। तो ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन। आंसर इज बिट डी। क्वेश्चन नंबर 78 कुछ स्टेटमेंट्स है। द बिडिंग डॉक्यूमेंट शुड इंडिकेट क्लियरली दैट द रिजल्टेंट कॉन्ट्रैक्ट विल बी इंटरप्रेटेड अंडर द इंडियन लॉज। ये करेक्ट है। द बिडर्स शुड बी गिवन रीजनेबल टाइम टू प्रिपेयर एंड सेंड देयर बिड्स। ये भी करेक्ट है। द बिड्स शुड बी ओपनड इन पब्लिक and authorized representatives of the bidders should be permitted to attend the bid opening। ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, जो इंडियन लॉज के हिसाब से बिडिंग डॉक्यूमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिजल्टेंट कॉन्ट्रैक्ट को इंटरप्रेट किया जाएगा और बिडर्स को रीजनेबल टाइम दिया जाएगा कि वो प्रिपेयर बिडिंग को, जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करे और उसको सबमिट करे, और पब्लिक के सामने, और जो बिडर्स का कोई रिप्रेजेंटेटिव वो भी प्रेजेंट रहेगा और उनके सामने बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को ओपन किया जाएगा। ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन। आंसर इज बिट डी, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 79 को चलेंगे। व्हेन ए लिमिटेड और ओपन टेंडर रिजल्ट्स इन ओनली वन इफेक्टिव ऑफर इट शैल बी ट्रीटेड एज ए सिंगल टेंडर कॉन्ट्रैक्ट। यदि लिमिटेड और ओपन टेंडर रिजल्ट में ओनली एक इफेक्टिव ऑफर आता है तो उसको हम डिक्लेयर करेंगे ये सिंगल टेंडर कॉन्ट्रैक्ट है। ये करेक्ट वन। आंसर इज बिट सी। ओके, एक इफेक्टिव ऑफर आता है उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा सिंगल टेंडर कॉन्ट्रैक्ट है। करेक्ट वन। आंसर इज बिट सी। 80 इन डैश पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर शुड एंश्योर एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी। आप देख लीजिए GFR 174, जनरल फाइनेंशियल रूल 174 में क्लियरली मेंशन है एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी के ऊपर फोकस किया गया है। तो जब गुड्स को प्रोक्योर किया जाएगा तब जो प्रोक्योरिंग अथॉरिटी वो एंश्योर करेगा कि with efficiency or in least cost and basically related to the economy and through proper accountability goods को प्रोक्योर किया गया है। ये GFR 174 में है। और जो GFR 173 में था
वो था कॉम्पिटिटिवनेस, फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी के ऊपर था। तो ये जो है एफिशिएंसी, इकोनॉमी, अकाउंटेबिलिटी इन द सिस्टम, बेसिकली एफिशिएंसी शुड बी मेंटेन्ड एंड इकोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी शुड बी मेंटेन टू प्रोक्योर द गुड्स। तो ये GFR 174 में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 81 ये दिया है कुछ स्टेटमेंट्स। टू रिड्यूस डिले अप्रोप्रिएट टाइम फ्रेम फॉर ईच स्टेज ऑफ प्रोक्योरमेंट शुड बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। तो डिले को कम करने के लिए बेसिकली तो अप्रोप्रिएट टाइम फ्रेम फॉर ईच स्टेज ऑफ प्रोक्योरमेंट शुड बी प्रिस्क्राइब्ड, इसको मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट प्रिस्क्राइब करेगा कि इसी टाइम फ्रेम में गुड्स को प्रोक्योर किया जाएगा, इतनी क्वांटिटी का गुड्स को प्रोक्योर किया जाएगा। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। टू मिनिमाइज द टाइम नीडेड फॉर डिसीजन मेकिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एवरी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट विद द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में डेलीगेट wherever necessary appropriate purchasing powers to the lower functionaries। ये भी करेक्ट है स्टेटमेंट। लोअर फंक्शनरीज को परचेजिंग पावर दिया जाएगा, तो वो उसको अप्रूवल कर दिया जाएगा, उसको फाइनेंशियल पावर दिया जाएगा लोअर फंक्शनरीज को, तो वो भी गुड्स को प्रोक्योर करेगा, तो इसमें डिले नहीं होगा। तो मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट शुड एंश्योर प्लेसमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद इन द ओरिजिनल वैलिडिटी ऑफ द बिड्स। एक्सटेंशन ऑफ द बीड वैलिडिटी मस्ट बी डिस्करेज्ड एंड रिस्टोर्ड टू ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। जो बीड वैलिडिटी पीरियड है, जो बीड वैलिडिटी पीरियड किसको कहा जाता है? जो बीड ओपनिंग डेट, जो भी बीडर सबमिट किया है डॉक्यूमेंट्स, उनका बीड उसको ओपन किया जाएगा और उसको एवेलुएट किया जाएगा, और फाइनली कॉन्ट्रैक्ट, फाइनली जो पर्टिकुलर सप्लायर और बीडर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा। तो उस जो है बीड वैलिडिटी पीरियड उसको एक्सटेंड नहीं है, सभी समय उसको डिस्करेज किया जाएगा कि जैसे बीड वैलिडिटी पीरियड को एक्सटेंड ना किया जाए, और कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में बीड वैलिडिटी पीरियड को एक्सटेंड किया जाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन। 82 कुछ स्टेटमेंट्स है। बीड वैलिडिटी पीरियड मीन्स द, ये जो बीड वैलिडिटी पीरियड के ऊपर है, बीड वैलिडिटी पीरियड मीन्स द पीरियड ऑफ टाइम सब्सिक्वेंट टू द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ बिड्स फॉर विच द बीड प्राइस एंड द कंडीशंस ऑफ बीड आर नॉट सब्जेक्ट टू एनी चेंज बाय द बीडर। ये भी है, ये बीड वैलिडिटी का डेफिनेशन है, ये भी करेक्ट है, क्योंकि जो बीड सबमिशन क्लोजिंग डेट हो गया उसके बाद बीड को ओपन किया जाएगा, तो उसमें चाहे बीड प्राइस हो चाहे कंडीशंस ऑफ बीड में कोई चेंज नहीं होगा बीड वैलिडिटी पीरियड में। ये भी ठीक है। बीड वैलिडिटी पीरियड मीन्स द पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन द बीड ओपनिंग डेट एंड कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्डेड टू द सक्सेसफुल बीडर। हाँ, उसी को हम बीड वैलिडिटी पीरियड बोलते हैं, जो बीड ओपनिंग डेट से जब बीडर्स का बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को ओपन किया जाएगा, उसको एवेलुएट किया जाएगा उसका जो क्राइटेरिया के हिसाब से, और ये कब तक चलेगा? अप टू द कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्डेड टू द सक्सेसफुल बीडर, वही है बीड वैलिडिटी पीरियड। ये भी ठीक है, स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट वन, बीड वैलिडिटी पीरियड मीन्स द पीरियड फिक्स्ड बाय ए कॉन्ट्रैक्टिंग अथॉरिटी टू परमिट एवेलुएशन एंड कंपैरिजन ऑफ टेंडर्स, obtaining all necessary clearances and approvals and notification award of contracts and finalize a contract। ये भी ठीक है, बीड वैलिडिटी पीरियड। तो तीनों जो बीड वैलिडिटी पीरियड के ऊपर जो डेफिनेशन दिया गया है, तीनों करेक्ट है, तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन। ये बहुत ईजी है। 83, CPPP सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल में बोला एक ऑनलाइन पोर्टल होता है जिसमें जब भी बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को इन्वाइट किया जाएगा उसका एडवर्टाइजमेंट CPPP में किया जाएगा, और जब फाइनली जो बिडर्स को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा उसको भी डिक्लेयर किया जाएगा CPPP पोर्टल में। उसका जो पोर्टल है eprocure.gov.in। तो इसका जो फुल फॉर्म है सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, आंसर इज बिट सी। ये है अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इज ए सिंगल टेंडर इंक्वायरी सिस्टम अडॉप्टेड। इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। कब सिंगल टेंडर इंक्वायरी को अडॉप्ट किया जाएगा, कब एक सिंगल फार्म से गुड्स को प्रोक्योर किया जाएगा? तो व्हेन रिक्वायर्ड गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ए पर्टिकुलर फार्म, इन केस ऑफ इमरजेंसी व्हेन द रिक्वायर्ड गुड्स आर नेसेसरली टू बी परचेज्ड फ्रॉम ए पर्टिकुलर सोर्स, फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मशीनरी और स्पेयर पार्ट्स टू बी कंपैटिबल टू द एग्जिस्टिंग सेट्स ऑफ इक्विपमेंट रिजल्टिंग इन परचेज ओनली फ्रॉम ए सिलेक्टेड फार्म, ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। GFR 166 में सिंगल टेंडर इंक्वायरी सिस्टम पहले से एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसको क्लैरिफाई कर चुका हूँ। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द ऑनलाइन रियल टाइम परचेजिंग टेक्निक यूटिलाइज्ड बाय द प्रोक्योरिंग एंटिटी टू सिलेक्ट ए सक्सेसफुल बिड? जो ऑनलाइन रियल टाइम परचेजिंग टेक्निक होता है वो ऑनलाइन बिडिंग होता है, ऑनलाइन बोली होता है। एक ऑनलाइन रियल टाइम माने एक पर्टिकुलर टाइम में इट मीन्स ऑनलाइन बोली होगा, तो सभी बिडर्स वो उनका रिप्रेजेंटेशन देंगे
तो उसी में ऑटोमेटिकली एक बिडर को सिलेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो है इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन, आंसर इज बिट सी। जो ऑनलाइन रियल टाइम परचेजिंग टेक्निक होता है वो इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन कहा जाता है, उसको ही ऑनलाइन बुली कहा जाता है, आंसर इज बिट सी। चलो 86 द अदर नेम ऑफ बीड सिक्योरिटी, जो मैं बार बार बताया, अदर नेम ऑफ बीड सिक्योरिटी इज अर्नेस्ट मनी, जो 2 to 5% ऑफ द एस्टिमेटेड वैल्यू होता है जब बीड डॉक्यूमेंट सबमिट होता है उसको सबमिट किया जाता है। मगर जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स है और जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस है और जो स्टार्टअप इंडस्ट्रीज है उनसे बीड सिक्योरिटी नहीं लिया जाता है। बीड सिक्योरिटी क्यों लिया जाता है? क्योंकि वो बीड वैलिडिटी पीरियड में उनका बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते और उनका बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को वो विथड्रॉ नहीं कर सकते, तो वो करेंगे तो उनका बीड सिक्योरिटी को फॉरफिट कर दिया जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 87, शुड ए बीडर रिक्वेस्ट और इंक्वायर अबाउट द रीजन्स फॉर रिजेक्शन और नॉन इशुएंस ऑफ ए टेंडर टू ए प्रोस्पेक्टिव बीडर, इज इट मैंडेटरी डिस्क्लोज द रीजन्स? यस, कभी एक बीडर को सपोज एक पर्टिकुलर बीडर्स को सपोज उसका इट मीन्स टेंडर को रिजेक्ट कर दिया गया और कोई प्रॉस्पेक्टिव बीडर को सपोज टेंडर इशू नहीं हुआ, जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स इशू नहीं हुआ, उसका रीजन मैंडेटरी है, कंपलसरी है, वो जो कंसर्न गवर्नमेंट प्रोक्यूरिंग एंटिटी है उसका रीजन भी देगा। तो इसीलिए बीड को रिजेक्ट कर दिया गया और इसी वजह से एक प्रॉस्पेक्टिव बीडर को बिडिंग डॉक्यूमेंट इशू नहीं किया गया, तो आंसर इज बिट एस। हाँ, वो उसको रीजन दिया जाएगा, मस्ट रीजन दिया जाएगा, आंसर इज बिट ए। चलो क्वेश्चन नंबर 88, व्हिच सिस्टम इज बीइंग फॉलोड फॉर परचेज ऑफ हाई वैल्यू प्लांट मशीनरी एटसेट्रा ऑफ ए कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल नेचर? मैं बोल चुका हूँ, हाई वैल्यू प्लांट मशीनरी एटसेट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल नेचर वो है 2 बीड सिस्टम। साइमल्टेनियसली टेक्निकल बीड साइमल्टेनियसली एक ही समय टेक्निकल बीड फाइनेंशियल बीड को सबमिट किया जाएगा, मगर फर्स्ट टेक्निकल बीड को ओपन किया जाएगा और जिन बीडर्स का जो टेक्निकल डिटेल्स है वो सही होगा और उनको मिनिमम स्कोर मिलेगा तो उनका ही फाइनेंशियल बीड को एवेल्यूएट किया जाएगा। तो बेसिकली फाइनेंशियल बीड में जो प्राइस शेड्यूल होता है, ठीक है, मगर साइमल्टेनियसली दोनों को सबमिट किया जाएगा, मगर फर्स्ट टेक्निकल बीड को ओपन किया जाएगा, उसके बाद जो भी बीडर्स टेक्निकली परफेक्ट है उनका ही फाइनेंशियल बीड को ओपन किया जाएगा। तो ये 2 बीड सिस्टम में होता है, ये याद रखना है, परचेज ऑफ हाई वैल्यू प्लांट मशीनरी एटसेट्रा पे कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल नेचर, आंसर इज बिट ए। चलो क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट इज द कॉस्ट चार्ज टू डाउनलोड टेंडर डॉक्यूमेंट्स? यदि आप टेंडर डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करोगे, कोई बीडर कोई सप्लायर वो वेबसाइट से टेंडर डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करेगा, चाहे CPPP पोर्टल हो, सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, चाहे जेम पोर्टल, चाहे वेबसाइट ऑफ द डिपार्टमेंट, तो वो उसमें कॉस्ट नहीं लगेगा, नो कॉस्ट, आंसर बिट सी। व्हाट इज द कॉस्ट पूछा है, नो कॉस्ट। जब ये टेंडर डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड किया जाएगा कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 90, ई प्रोक्योरमेंट अकॉर्डिंग टू GFR मीन्स, जो ई प्रोक्योरमेंट है वो देखिए GFR 160 में है, जो ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल में अभी बताया सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, तो ये एक ऑनलाइन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, इट इज आंसर इज बिट बी, राइट। क्वेश्चन नंबर 91 को चलेंगे, आइडेंटिफाई ए रीजन फॉर विच ए बीडर शैल नॉट बी डिबेयर्ड। कब बीडर्स को डिबेयर नहीं किया जाएगा? हम जानते हैं व्हेन ही इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, उसको डिबेयर कर दिया जाएगा। व्हेन द बीडर मेक्स द हाईएस्ट कोर्ट, नहीं, इसमें उसको डिबेयर नहीं किया जाएगा। व्हेन ही इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अंडर इंडियन पेनल कोड, उसको डिबेयर कर दिया जाएगा। व्हेन द बीडर हैज ब्रीच द कोड ऑफ इंटीग्रिटी, इसको डिबेयर कर दिया जाएगा। मगर इसमें आंसर इज बिट बी, व्हेन द बीडर मेक्स द हाईएस्ट कोर्ट, ओके, इसी रीजन से उसको डिबेयर नहीं किया जाएगा, राइट, आंसर इज बिट बी। वही पूछा है, आइडेंटिफाई रीजन फॉर विच ए बीडर शैल नॉट बी डिबेयर्ड। कौन सा ऐसा रीजन है जिसमें बीडर को डिबेयर नहीं किया जाएगा? तो आंसर इज बिट बी, व्हेन द बीडर मेक्स द हाईएस्ट कोर्ट। जो अदर 3 है A, C एंड D, इस केस में बीडर को डिबेयर किया जाएगा। 92, व्हेन ए लिमिटेड टेंडर रिजल्ट्स इन ओनली 1 इफेक्टिव ऑफर, इट शैल बी ट्रीटेड एज, ओनली 1 इफेक्टिव ऑफर होता है तो इट शैल बी ट्रीटेड एज सिंगल टेंडर कॉन्ट्रैक्ट, आंसर इज बिट सी, सिंगल टेंडर कॉन्ट्रैक्ट, आंसर इज बिट सी। 93 बहुत ईजी है, इन ए 2 बीड सिस्टम व्हाट आर द 2 बीड्स? बेसिकली फाइनेंशियल बीड और टेक्निकल बीड, ओके, आंसर इज III जो है बीट बी, III एंड IV, राइट। चलो 94, व्हेन इज रिजेक्शन ऑफ ऑल बीड्स जस्टिफाइड? कब ऑल बीड्स को रिजेक्ट किया जाएगा? व्हेन ऑल बीड्स मीट द क्राइटेरिया फॉर एवेल्युएशन ऑफ बीड्स, व्हेन द टेक्निकल बीड्स मीट्स द मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर, व्हेन इफेक्टिव कंपटीशन इज लैकिंग, when bids or proposals are responsive to the requirements of the procurement division। तो आंसर इज बिट सी, when effective competition is lacking। अदर जो A
बी एंड डी है, उस केस में बिड्स को रिजेक्शन नहीं किया जाएगा। जब व्हेन इफेक्टिव कंपटीशन इज लैकिंग, इस केस में बिड्स को रिजेक्ट किया जाएगा। तो आंसर इज बिट सी। चलो क्वेश्चन नंबर 95, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट इन टर्म्स ऑफ बिडिंग प्रोसीजर्स? Contract should ordinarily be awarded to the lowest evaluated bidder who is qualified to perform satisfactorily. Negotiation with bidders can be done to achieve the lowest bid even after opening the bid. Any new condition can be brought in for evaluation of bids. Bidders can modify or alter their bids after expiry of the deadline for receipt of bids. तो B, C and D वो wrong है। Actually contract should ordinarily be awarded to the lowest evaluated bidder who is qualified to perform satisfactorily. Answer is bit A. Right? Is just A sentence correct है। Answer is bit A. चलो 96, which one is incorrect one? GFR 161 एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी, 162 लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी ठीक है। GFR 163 लेट बिड्स ये रॉन्ग है, क्योंकि GFR 165 लेट बिड्स है, 163 टू बिड सिस्टम है। तो यहाँ पर दिया है GFR 100 लेट बिड्स, ये रॉन्ग है। लेट बिड्स 165 जो जनरल फाइनेंशियल रूल 165, तो जनरल फाइनेंशियल रूल 164 टू स्टेज बिडिंग है, ये राइट है। तो आंसर इज बिड सी, ये करेक्ट नहीं है। लेट बिड्स के ऊपर जो जनरल फाइनेंशियल रूल है वो 165 है। विच वन इज इनकरेक्ट वन? GFR 163 टू बिड सिस्टम करेक्ट है। GFR 164 टू स्टेज बिडिंग करेक्ट है। GFR 165 लेट बिड्स करेक्ट है। GFR 166 इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन नो। GFR 166 सिंगल टेंडर इंक्वायरी है, सिंगल टेंडर इंक्वायरी। जो इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन है वो GFR 167 है, तो इनकरेक्ट है डी। GFR 166 इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन नहीं है, ये क्या है? सिंगल टेंडर इंक्वायरी है। चलो व्हिच GFR कंटेंट्स ऑफ बिडिंग डॉक्यूमेंट? कुछ बिडिंग डॉक्यूमेंट जो कंटेंट्स होता है वो GFR 168 में है। आप देख लीजिए GFR 168 उसमें कंटेंट्स के ऊपर है कि बिडिंग डॉक्यूमेंट एक्चुअली किस तरीके से क्या क्या बिडिंग डॉक्यूमेंट चाहिए। यहाँ पर मैं थोड़ा मेंशन कर दिया। GFR 160 इंस्ट्रक्शन टू बिडर्स, इंस्ट्रक्शन से बिडर्स को इंस्ट्रक्शन है। कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का कंडीशंस, प्राइस शेड्यूल, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म, शेड्यूल ऑफ रिक्वायरमेंट्स एंड अदर स्टैंडर्ड फॉर्म्स, ये सब होता है। ये जो कंटेंट होता है, जब बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को इनवाइट किया जाता है तो कुछ कंटेंट होता है। बिडर्स को इंस्ट्रक्शन है कि कॉन्ट्रैक्ट का कंडीशन है, प्राइस शेड्यूल है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है, शेड्यूल ऑफ रिक्वायरमेंट्स एंड अदर, ये सब आता है जो GFR 168। आंसर इज बिट सी। चलो क्वेश्चन नंबर 99, व्हिच जनरल फाइनेंशियल रूल रिलेटेड टू नो ऑफिशियल ऑफ ए प्रोक्यूरिंग एंटिटी और ए बिडर शैल एक्ट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द कोड ऑफ इंटीग्रिटी? जो कोड ऑफ इंटीग्रिटी के ऊपर है, मैं बताया कोई भी बिडर्स यदि कोड ऑफ इंटीग्रिटी को कॉन्ट्रावेन करता है और ब्रीच करता है, उसको कंसर्न प्रोक्यूरिंग एंटिटी 2 ईयर्स के लिए डिवेयर करता है। ओके, जनरली जब कॉन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस वो 3 ईयर्स के लिए डिवेयर होता है, मगर ब्रीचिंग ऑफ कोड ऑफ इंटीग्रिटी 2 ईयर्स के लिए डिवेयर होता है। तो ये GFR 175 में है। GFR 175 में देख लीजिए कोड ऑफ इंटीग्रिटी है, उसको बिडर्स एंड सप्लायर्स उसको कॉन्ट्रावेन नहीं करना है, राइट। तो लास्ट क्वेश्चन आज का, इट इज मैंडेटरी फॉर मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स टू रिसीव ऑल बिड्स थ्रू ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल्स इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल प्रोक्योरमेंट्स एक्सेप्ट। तो जो ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, जो CPPP सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, जिसका साइट है eprocure.gov.in, eprocure.gov.in, इसमें जब भी बिडिंग इनवाइट किया जाएगा उसमें उसको अपलोड किया जाएगा। ओके, बेसिकली CPPP पोर्टल में, तो उससे एक्चुअली बिडर्स एंड सप्लायर्स बिडिंग डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करेंगे। मैं बार बार बताया जो ऑफिस की डिपार्टमेंट की कंसर्न मिनिस्ट्री, उसका वेबसाइट में उसको अपलोड किया जाएगा बिडिंग डॉक्यूमेंट को, और उसको जो CPPP पोर्टल है सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल में उसको भी अपलोड किया जाएगा, और JEM पोर्टल में अपलोड किया जाएगा, ठीक है। मगर ऐसा क्या कुछ केस में एक्चुअली उसको बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं किया जाएगा। तो स्टेटमेंट दिया है, वेयर नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशंस डिमांड्स कॉन्फिडेंशियलिटी। कुछ ऐसा नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशंस है जो कॉन्फिडेंशियल है, उस केस में उसको ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल में एडवर्टाइज नहीं किया जाएगा। और टेंडर्स फ्लोटेड बाय इंडियन मिशंस अब्रोड, यदि हमारे जो मिशंस इंडियन मिशंस अब्रोड है वो कुछ टेंडर्स इनवाइट करते हैं, उसको भी ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल में पब्लिश नहीं किया जाएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है।
बोथ द स्टेटमेंट्स करेक्ट वन। तो आज 100 क्वेश्चन था प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स के ऊपर, और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विसेज के ऊपर होगा, कंसल्टेंसी एंड नॉन कंसल्टेंसी सर्विस। तो माय फ्रेंड्स ये 100 क्वेश्चन आप थोरोली देख लेंगे तो मुझे लगता है कि जो भी फाइनेंशियल पार्ट में जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आपको भूल नहीं होगा। और ऐसा भाईबा में भी जो क्वेश्चंस पूछेंगे इसके ऊपर, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें आता है, फाइनेंशियल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुझे लगता है कि आप सभी क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो प्लीज़ इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ माई चैनल नेम इज़ असित गवर्नमेंट रूल गुरु, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, please my friends, so that you can get notification for my upcoming videos. Thank you.